राम कबीर। राम कबीर। Go ahead, Pratibha. रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग नाले इस पापी मन को अपने रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, जो सबरी पर रंग चढ़ाता जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे जिस रंग रंगे कबीरा, हम पर भी वो रंग चढ़ा दो, हम पर भी वो रंग चढ़ा दो, उन पे जो रंग चढ़ा था रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा, इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा, जिसको लागा रंग ये तेरा, जिसको लागा रंग ये तेरा, कोई उतार न पाया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, रंग पाए इस मन को जब तू रंग चढ़ाए, हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, रंग पाए इस मन को जब तू रंग चढ़ाए, हम निर्धन है हम पर करना, हम निर्धन है हम पर करना, अपनी दया की छाया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। राम कबीर। राम कबीर साहेब बंदगी। थैंक यू प्रीतिबेन, તમે આ સરસ મજાનું વાતાવરણ આધ્યાત્મિક વાતાવરણ ઊભું કરી નાખ્યું એ બદલ તમારો ઘણો ઘણો આભાર રામ કબીર। રામ કબીર સર્વ ભક્તજનોને રવિવારની સવાર એટલે આપણે બધાએ મળીને એક આધ્યાત્મિક પ્રવાસ કરવાની જે આ પ્રથા આપણે પાડી છે એ સુબટ સંગમમાં આપ સર્વનું સ્વાગત છે। આજે આપણા અતિથિ તરીકે આપણા ગુરુ અભયદાસજી આપણી સાથે છે। એમનો ટૂંકમાં પરિચય આપી જાઉં છું, કારણ કે આપણી સાથે એ ત્રીજી વાર જોડાય છે અને
એમનો ટૂંકમાં પરિચય એટલા માટે કારણ કે આપણે 2 વાર તો આપણે ઓલરેડી એમને સાંભળ્યા છે, આપણે જાણીએ છીએ, અને હવે આપણામાંના એક છે, આપણે એવું કહી શકાય એવી વ્યક્તિત્વ એમણે આપણી સાથે અચીવ કર્યું છે. અને થોડા દિવસોથી અમે અહીંયા લોસ એન્જલિસ એરિયામાં છે, અને એમાં પણ આપણે ફેસબુક પર આપણે બધાએ જોયું જ છે એમને, તો એ પ્રમાણે આપણે એમને ઓળખીએ છીએ. પરંતુ એમનો એક વિશેષ ગુણ વિશે આજે વાત કરવી છે કે એઓ અત્યારે આદિવાસી કે જેઓ આપણા ભારતના જે ગરીબ એરિયામાં જ્યાં જે શિક્ષણની સગવડ પહોંચી નથી શકતી એવા એરિયામાં રહી છે, ત્યાં આદિવાસીની એરિયાની અંદર એઓ પોતે ગુરુકુળની સ્થાપના કરે છે, ગુરુકુળ સારી રીતે ચલાવે છે, અને ત્યાંના જે છોકરાઓ જે બધા બાળકો છે એ બાળકોને શિક્ષણ સારી રીતે મળી શકે અને બિના ખર્ચે જે એ લોકો એફોર્ડ કરી શકે એવી રીતે અને એમની ભાષાની અંદર એમને ત્યાંથી ઉઠાવી અને આપણા જેવું એક સરસ મજાનું સગવડ મળી શકે એ માટે એમના પ્રયત્નો ચાલુ છે. અત્યારે આદિવાસી માટે ઘણું બધું કામ કરે છે. અહીંયા અમેરિકામાં પણ એમણે આદિવાસી વિશે જ ઓગસ્ટ 14 ના જે વર્લ્ડ રિલિજન જે પાર્લામેન્ટ ઓફ વર્લ્ડ રિલિજન જેને કહીએ એમાં એમણે આનું પ્રેઝન્ટેશન પણ આપ્યું છે. અને બીજું એમનું એક સિદ્ધિ જે અત્યારે ઇન્ડિયાની અંદર ભારત માતાનું એક મોટું મંદિરનું નિર્માણ કરી રહ્યા છે. મંદિર નહીં કહેવાય એને, એમના પ્રમાણે જે વાત કરે છે એ પ્રમાણે તો આપણે એને મ્યુઝિયમ કહી શકીએ, એને એક એવી આકૃતિ કહી શકીએ કે જેનાથી આપણે બધા પ્રાઉડ લઈ શકીએ કે યસ, આ આપણા માટે છે, આપણા બાળકો માટે છે, અને ભવિષ્યમાં બધાને જ કામ લાગે એવી રીતે સનાતન ધર્મી દ્વારા સનાતન ધર્મીઓ માટે એક એવો પ્રયાસ છે જે ગુરુજી ઇન્ડિયામાં કરે છે. સો ફાર આટલું આપણું વાત કરી છે. હવે આજના સેશન વિશે તમને વાત કરું તો આજે આપણે મુખ્યત્વે 2 સેશન કરવાના છીએ. પ્રથમ સેશનની અંદર ગુરુજી આપણને જે કૃષ્ણ ભગવાનનો મેસેજ છે કે માનો કે આજે કદાચ કૃષ્ણ ભગવાન આપણી સામે આવ્યા હોય તો કૃષ્ણ ભગવાન આપણને કયો મેસેજ આપે, કારણ કે ગુરુજી તો આપણને પણ ઓળખે છે સારી રીતે, આપણી સાથે ઘણો પ્રવાસ કર્યો છે અમેરિકામાં એમણે, એટલે અમેરિકાના બધા જ લોકો સાથે, ગરડાઓ સાથે, યંગસ્ટર માટે, બાળકો માટે બધાને એવો હવે સારી રીતે ઓળખે છે. હવે એ માટે એમને બહુ સુંદર મેસેજ લઈને આવે છે આજે કે લોર્ડ કૃષ્ણ ભગવાન જો આપણી સામે આવે તો આપણને આજની પરિસ્થિતિઓમાં આપણે જ્યાં રહીએ છીએ તે માટે કયો સંદેશો આપે. તો એ પ્રથમ સબ્જેક્ટ છે, પ્રથમ સેશન છે. એ પ્રથમ સેશન પતે પછી આપણે બીજા સેશનની વાત કરીશું. તો ગુરુજી વેલકમ. राम कबीर नमस्ते. राम कबीर, जय श्री कृष्ण. आज तो भगवान कृष्ण का संदेश जन जन तक पहुंचाने वाले हम सभी. थैंक यू. आपने तो हमारे पे कृपा कर ही दी आज तक, फिर से आज और कृपा करके हमें ये थोड़ा सब्जेक्ट का डिटेल में कुछ बताइए कि जैसे हमें भी अलग है कि श्री कृष्ण भगवान हमारे सामने आ गए और हमें मैसेज दिया है, तो आपके लिए ये द्वार खुला है. पहली तो बधाने मारा खूब खूब आशीर्वाद. જેટલા ભગત અમેરિકાથી જોડેલા છે और જેટલા ઇન્ડિયાથી જોડેલા છે બધાને મારા बहुत बहुत आशीर्वाद. आज बहुत ही सौभाग्य और आनंद का विषय है कि हम सभी एक बार फिर जूम मीटिंग के माध्यम से, ये रखने का उद्देश्य भी यही रहा कि बहुत सारे लोग हैं जो लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं अमेरिका में होते हुए भी, तो उनको भी ये लाभ मिल पा रहा है. और भारत से भी आज मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं जूम मीटिंग में. ये बहुत ही आनंद का विषय है कि हम सब कुछ जानने के लिए, आज भी हमारे अंदर ये भाव है कि हमें कुछ जानना है, कुछ नया. हम सब नवीनता को पसंद करते हैं और ये मानव प्रकृति है कि नई चीजों के प्रति हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना. तो आज का सब्जेक्ट भी बड़ा अद्भुत है, लॉर्ड कृष्णा's मैसेज टू यू. आप लोगों को भगवान कृष्ण आज की दुनिया में क्या कहना चाहते हैं. वो सिर्फ आज नहीं, वो जब द्वापर युग में जब उनका अवतरण हुआ और उनके वापस स्वधाम गमन से पहले तक की उनकी पूरी जीवन यात्रा, मानो आने वाले कलयुग और कलयुग में रहने वाले जीवों को उनकी पूरी जीवन यात्रा प्रेरणा दे रही थी कि अब आने वाला युग कैसा होगा और उसमें तुम्हें क्या करना. और इसी का
सबसे प्रमुख स्वरूप जो है रामचरितमानस में, तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कि आने वाला कलयुग जो है वो नाम पर आधारित होगा, सुमिरन पर आधारित होगा, ध्यान पर आधारित होगा, जाप पर आधारित होगा। एक समय था जब बहुत अनुष्ठान होते थे, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में आप देखिए बड़े बड़े अनुष्ठानों के माध्यम से व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता था। एक समय था जब बड़ी बड़ी तपस्याएं की जाती थी, अनवरत रूप से कई ऐसे ऐसे ऋषि थे जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक तपस्याएं की। मानता हूं कि कलयुग में तो ये संभव नहीं, इतनी शक्तियां, इतनी सिद्धियां हर व्यक्ति के पास नहीं होती कि वो अपने जीवन की आयु को भी अल्प करके साधना को बड़ा बना दे, और उनके लिए 100, 200, 1000 वर्ष भी कोई महत्वपूर्ण न रहे, अपनी चेतना को उस स्तर तक ले जाए। तो यह तो तय है कि उन युगों जैसा कलयुग नहीं है, लेकिन आज के इस युग में हमें कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं? हमें कृष्ण कहना चाह रहे हैं उनके जीवन से। आप भगवान कृष्ण के बचपन से देखिए, जब वो बाल रूप में अवतरित हुए, अवतरित होने के बाद से ही उनके जीवन में संकट शुरू हुए। ये एक लौकिक दृष्टि बता रहा हूं। यह बात अलग है कि अलौकिक दृष्टि में तो कृष्ण की ही माया सब कुछ रही, उस विष्णु की ही माया सब रही। सारा ईश्वर, उस परम शक्ति ने ही सब कुछ करवाया। वो ग्वाल बाल से लेकर के वो वृंदावन में वो गायें, वो कृष्ण, वो यशोदा, हमारे नंद बाबा, ये जितने भी कैरेक्टर, जितने भी चरित्र आप इस कथा में देखते हैं, ये सारी की सारी कहा जाता है कि माया तो उन कृष्ण की ही है। लेकिन फिर भी उन्होंने हमें कलयुग में, आने वाले युग में हम लोगों के लिए कैसा संदेश दिया। बचपन से ध्यान दीजिए, जब भगवान कृष्ण आए गोकुल में, नंद भवन में, उनके कुछ ही दिनों के बाद, 2-3 दिनों के अंदर अंदर ही मारने के लिए कौन आई? पूतना मासी आई। रिश्ते में तो मासी ही लगती थी। जो रिश्ते में आपकी मासी लगती हो, सखी हो, चाहे रिश्ते में हो, चाहे काका बाबा में हो, जो आपके रिश्ते में लगती हो मासी, आपको पता चले कि वही आपको मारने आवे, वही आपके प्राणों का हरण करने के लिए आए, जो आपको मारने के लिए, समाप्त करने के लिए आए, आपको कैसा महसूस होगा? यहां से प्रारंभ करता हूं। पूतना जो उसकी अपनी थी, जो भगवान कृष्ण के रिश्ते में कुछ लगती थी, वो उन्हें मारने के लिए आई। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया? जो उन्हें मारने आया उन्हें भी अपना धाम दिया। अपनी शरण में आए हुए, शरणागत जो व्यक्ति है, शरण वत्सल कहते हैं ना भगवान को, कि जो अपनी शरण में आए हुए व्यक्तियों को भी, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, उसके मन में भाव शुद्ध है या नहीं है, उनके मन में भाव पवित्र है या अपवित्र है, फिर भी भगवान उनका कल्याण करते हैं। पूतना को हंसते हंसते मारा, और मारने का भी कोई आशय ऐसा नहीं कि मासी के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार किया। मासी की दृष्टि खराब थी, उनकी विचारधारा खराब थी, इसलिए उन्होंने क्या किया? स्तन पर विष लगा करके उन्हें स्तनपान कराया। लेकिन भगवान ने तरीका कैसा ढूंढा? दुग्धपान तो किया, लेकिन साथ ही साथ उनके प्राण भी भगवान पी गए। अर्थात अपनी सगी मासी को जिन्होंने अपना धाम दिया, स्वधाम दिया, परम कल्याण किया, उन्हें सत्यलोक दिया, उन्हें वह वैकुंठ दिया, कितनी बड़ी बात है। चेहरे पर इतना भी शिकन नहीं, इतनी भी चिंता नहीं, इतना भी दुख नहीं, हंसते हंसते वहां से यात्रा शुरू हुई। कितने राक्षस आए, कभी शक्टासुर आया, कभी अघासुर आया, कभी बकासुर आया, कभी धेनुकासुर आया, कभी वत्सासुर आया, एक से एक राक्षस आए, बार बार, कभी तृणावत आया, कभी कौन आया, लेकिन सबको भगवान ने अपने धाम भेजा। अब आप विचार करिए, जब पता चले कि उन्हें वापस जाना पड़ेगा मथुरा, अपनी माँ को छोड़ना पड़ेगा, जिसने पाल पोस करके बड़ा किया, उस यशोदा को छोड़कर, जिन गोपियों के साथ, गोपियां मतलब जिन आत्माओं के साथ, जो आत्मा परमात्मा से संबंध रखना चाहती थी, लौकिक दृष्टि से देखिए, जिन गोपियों के घर में भगवान कृष्ण खूब खेले, खूब आनंद किए, खूब मक्खन का लाड लड़ाया, जब उन्हें छोड़ करके जाना पड़ा, तब भी चेहरे पर दुख नहीं, शिकन नहीं, चिंता नहीं, निकल पड़े। किस लिए? कर्तव्य पथ के लिए, क्योंकि उनका कर्तव्य पुकार रहा था कि किस कारण से उन्होंने जन्म लिया, क्या कारण था उनका अवतार लेने का। कारण था कंस नामक दैत्य से सृष्टि का भार कम करना। जब कर्तव्य पुकारा,
तब भी मुस्कुराते हुए निकल पड़े मथुरा की ओर। मथुरा गए, कंस का वध किया। वध करने के बाद अपने माता पिता से पहली बार मिले। ढंग से तो पहली बार अभी मिले वसुदेव और देवकी से। माता पिता से मिले, तब भी चेहरे पर मुस्कुराहट। अपनी मुस्कुराहट से उन्होंने माता पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट दी। पता चले कि जिसको आपने अभी भी मारा है, सब कुछ है, जिनके शासन में आप जिएंगे, आपको पता चले कि अभी अभी कंस को मारा और कंस की जो पत्नी थी वो पत्नी जरासंध की बेटी थी। पता चला कि मेरे जमाई को मार दिया, जरासंध लेके आया है सेना। फिर से युद्ध, जरासंध सेना लेकर के आया, भगवान कृष्ण पर आक्रमण हुआ। सोचिए, जिसने अभी अभी युद्ध को विराम दिया हो, जिसने अभी अभी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की हो सांदीपनि ऋषि के आश्रम में, उन्हें फिर पता चलता है कि कोई युद्ध करने के लिए उनके सामने आ रहा है, कोई उनसे लड़ाई करने के लिए आ रहा है। सोचिए, तब भी उनके चेहरे पर दुख नहीं, शिकन नहीं, चिंता नहीं। ये एक लौकिक दृष्टि बता रहा हूं, अलौकिक दृष्टि पे तो मैं जा ही नहीं रहा। अगर लौकिक दृष्टि से भी आप चिंतन करेंगे कि संघर्ष करना किसे कहते हैं, अगर कलयुग में हमें किसी को पूर्ण ईश्वर के रूप में देखना है तो हम उसे कृष्ण के रूप में क्यों देख सकते हैं? क्योंकि कितना संघर्ष देखा, अभी अभी तो युद्ध को विराम दिया, अभी अभी तो शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, अभी अभी तो घर लौटे और पता चला कि जरासंध सेना लेकर के आया है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार जिन्होंने युद्ध किया हो, और 17 बार युद्ध करने के बाद भी पूरे जीवन के दौरान कभी चेहरे पर शिकन नहीं, कभी तकलीफ नहीं, कभी दुख नहीं। आज की कृष्ण आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं मालूम है? वो कहना चाह रहे हैं कि कलयुग में तुम जो देख रहे हो ना संघर्ष, यह संघर्ष कुछ भी नहीं था उनके जीवन के सामने जिस कृष्ण को आज आप देख। कृष्ण को लौकिक दृष्टि से देखोगे ना तो भी वो श्रेष्ठ है, और अलौकिक दृष्टि से देखोगे तो फिर उनके जैसा तो कोई पूर्ण ईश्वर ही नहीं, ईश्वर का कोई ऐसा स्वरूप ही नहीं। कितने पूर्ण, हर अब उनकी विद्याओं और उनकी कलाओं पर, उनकी बुद्धि पर जाइए, उन्होंने जहां जैसा आवश्यक है, जहां पर उन्हें लगा कि धर्म भी बाधक हो रहा है, अर्थात जो मैंने धारणा की है, जो मैंने संकल्प लिया है, वह संकल्प भी बाधक हो रहा है, योद्धा होते हुए भी युद्ध छोड़ करके भागे, रणछोड़ कहलाए। उन्हें पता था कि काल यवन आ रहा है, उसे यह वरदान है कि वो उसे कोई मार नहीं सकता। तो काल यवन को कहां लेके गए? उस गुफा में जहां राजा मुचकुंद सो रहा था। राजा मुचकुंद को यह वरदान था कि जो उसकी नींद खराब करेगा और पहली बार दृष्टि राजा मुचकुंद की जिस पे पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। भगवान गए, अपनी पीतांबरी निकाल करके राजा मुचकुंद पर डाल दी। 17 बार युद्ध होने के बाद 18वीं बार जैसे ही काल यवन पीछे पीछे आया, भगवान ने कहा तुम निकलो यहां से, इसको मैं संभालता हूं। भगवान आगे आगे, काल यवन पीछे पीछे। बलराम जी कहने लगे, बड़े भाई क्या कहने लगे? भाई साहब दाग लगाओगे हमारे ऊपर, कलंक लगाओगे। हम योद्धा लोग अगर युद्ध की भूमि छोड़ करके भाग जाएंगे तो हम पर कैसा कलंक लगेगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बुद्धि का उपयोग किया। यहाँ पर उन्होंने कहा ये द्वापर युग का अंत है, आने वाला कलयुग है। हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं भगवान कृष्ण कि कलयुग में भी बुद्धि के साथ में धारणा, धर्म भी बुद्धि और विवेक के साथ। धर्म का मतलब होता है धारण करना, संकल्पित होना, यह होता है धर्म। जब एक समूह एक रूप में संकल्पित होता है, वहां से धर्म स्थापित हो जाता है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर क्या धारणा करी कि बुद्धि के साथ, विवेक के साथ उन्होंने द्वापर के अंत में यह संकल्प लिया। क्या लिया? कि अगर मैं यहाँ पर युद्ध लड़ूंगा तो फिर मेरा इसको दिया हुआ, क्योंकि कृष्ण ने ही तो इसको, भगवान की ही किसी स्वरूप ने इसको यह वरदान दिया था कि तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। तो आज काल यवन पीछे पीछे, भगवान आगे आगे पहुंचे राजा मुचकुंद वाली उसी गुफा में। उसी गुफा में जाकर भगवान ने अपना पीतांबरी निकाल करके राजा मुचकुंद को उड़ा दिया। राजा मुचकुंद को कृष्ण समझ करके काल यवन ने उनके पैर पकड़ के उन्हें खींचने का प्रयास किया। नींद खुली राजा मुचकुंद की। उन्हें, राजा मुचकुंद को यह वरदान था कि जो भी उनकी नींद खराब करेगा और पहली बार उनकी दृष्टि जिस पे ही पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। आंखें खुली और दृष्टि पड़ी काल यवन पर, काल यवन का काम तमाम हो गया। अब आप समझिए, कृष्ण की बुद्धि, उनका विवेक, उनका विचार। लौकिक दृष्टि से ही देखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में शिक्षा पाते ही 17 बार युद्ध करने का योग लिखा हो, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में
संघर्ष ही देखा हो, कभी एक दिन भी, एक रात भी चैन से जो न सो पाए हो। अगर गोकुल और वृंदावन की बात की जाए तो कुछ समय, हर 5-7 दिन में कोई न कोई राक्षस आता था, 4-5 दिन मिलते थे जिसमें वो लीलाएं करते थे, उसमें आनंद करते थे। लेकिन बचपन से लेकर के अपने अंतिम समय तक भगवान कृष्ण ने जितना संघर्ष देखा, उतना आप में से और हम में से किसी ने नहीं देखा, ना हम कभी देख पाएंगे। आप एक घर का अपना गृह युद्ध नहीं संभाल पाते। आप लोग पति पत्नी के बीच में जो थोड़ी सी अनबन हो जाती है, बाप बेटे के बीच में हो जाती है, भाई बहन के बीच में हो जाती है, अरे हम लोग तो उस अनबन को नहीं संभाल पाते। उन्होंने, उस ईश्वर के स्वरूप ने, उस पूर्ण काम ईश्वर ने क्या किया, इतने बड़े संघर्ष को संभाला। इसलिए उन्हें हम ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर के साथ साथ अगर लौकिक दृष्टि से कहें तो कृष्ण जैसा कोई नहीं हो पाया। पूर्ण ईश्वर, कोई कमी नहीं, हर तरह से जहां पर जिस युक्ति से कार्य किया जा सकता है उन्होंने उस युक्ति का प्रयोग किया। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने मर्यादाओं को नहीं लांगा। जहां पर युक्ति थी, जहां पर कोशिश थी कि भाई, हाँ, जहां पर उन्होंने सोचा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कि यहाँ पर सिद्धांतों के विपरीत है, वहां पर उन्होंने वो लाइन क्रॉस ही नहीं की। लेकिन भगवान कृष्ण ने, यहाँ पर उनका स्वरूप अलग है। उन्हें लगा कि यहाँ आवश्यक है, भले मुझे धर्म तोड़ना पड़े या धारणा, मेरे संकल्पों को तोड़ना पड़े, उन्होंने तोड़ा। चाहे रणछोड़ वाला स्वरूप हो, चाहे और कोई भी, बहुत सारे उदाहरण है। तो भगवान कृष्ण का आज संदेश आप सब लोगों को क्या है? आज उनका संदेश है, परिस्थितियां चाहे कोई भी हो, अपने चेहरे की मुस्कान को, और मुस्कान झूठी नहीं, ध्यान रखना, आप अपने आप को धोखा दे सकते हो, अपने हृदय को नहीं। आप दुनिया को धोखा दे सकते हो, अपने आप को अंदर से धोखा नहीं दे सकते। इस बात को ध्यान रखिएगा। चेहरे पे मुस्कान, प्रसन्नता, हंसी, खुशी, और ये अंदर से आनी चाहिए। बस यही भगवान कृष्ण का संदेश आज की दुनिया को और आप सभी लोगों को है। लॉर्ड कृष्णाज मैसेज टू यू, जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, भगवान कृष्ण आप सभी लोगों से कहना चाह रहे हैं, अंदर की प्रसन्नता, अपने अंदर के जॉय को, हैप्पीनेस को खत्म मत होने देना, उसे जीवित रखना। इस बात का ध्यान रखें। जी हेमंत भाई, आपका ये सब्जेक्ट का उत्तर मैंने आपको दिया। नहीं, बहुत बहुत अच्छे से आपने दे दिया, और हमें भी वो प्रेरणा मिल गई अभी कि हमें जो कुछ करना है वो हमें करना है, और हमें आनंद में रहने के करना है। हमारे जो स्ट्रगल के लिए कुछ रोना धोना नहीं है हमें। और उससे तो फिर आप ये तो आपने जनरलाइज मैसेज किया अभी कि जैसे ना कि आप कृष्ण भगवान, मगर अगर देखो कुछ बच्चों को बोलना है कृष्ण भगवान को कि भाई यहाँ पे तुम प्रोग्रेस कैसे कर सकते हो, कैसे आप यहाँ पे जी सकते हो, क्या क्या उसके जीवन से ले कि आज उसको हेल्प करे, कुछ बता बच्चों के सकते लिए हैं? भी यही महत्वपूर्ण है। इसी विषय को मैं थोड़ा सरल कर देता हूँ। अमेरिका में मैंने एक चीज देखी कि बच्चे बात बात पर एक छोटी चीज, एक छोटी सी बात को लेकर के बहुत ज्यादा इस बात को माइंड करते हैं, सोचते रहते हैं। आई हैव टू मच वर्क, आई एम इन टू स्ट्रेस, टू स्ट्रेस, टू स्ट्रेस। ये स्ट्रेस वर्ड जो अमेरिका में सबके दिमाग में घुसा हुआ है ना, उन स्ट्रेस वर्ड वाले मेरे बच्चों को ये बात समझना चाहिए कि कृष्ण ने कभी स्ट्रेस लिया? सिचुएशन चाहे उनके अकॉर्डिंग हो या उनके अकॉर्डिंग ना हो, फिर भी वो कभी स्ट्रेस में नहीं आए। ना तो उन्होंने कभी स्ट्रेस किसी को दिया, ना उन्होंने स्ट्रेस लिया। यही एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप अपनी चीजों को, अपने कामों को दिन प्रतिदिन बढ़ा सकते हो, उसका विकास कर सकते हो। इस बात का ध्यान दें कि हमें स्ट्रेस नाम की कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं। संघर्ष अर्थात आपके जीवित होने का प्रमाण, समझिए, इस बात को सभी समझिएगा। अगर आपके जीवन में संघर्ष है अर्थात आप जीवित हैं। मृत व्यक्ति को कोई संघर्ष नहीं मिलता है। मरे हुए को आकर के कोई कुछ नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या प्रेशर है, क्या प्रेशर नहीं है, क्या करना है। जो जीवित है ना, उसी को प्रेशर मिलता है, उसी को संघर्ष मिलता है, उसी को टास्क मिलता है। तो किसी टास्क को लेकर के हमें डरना नहीं है। अगर वो टास्क मिला, उस टास्क को अचीव कैसे करना, उसके बारे में चिंतन करो। और ध्यान रखो, जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, चिंतन का मतलब चिंता बिल्कुल नहीं है। चिंतन का मतलब पॉजिटिवली
the way you can find how to achieve that target that you have set. जो आपने टारगेट सेट कर रखा है उसे अचीव कैसे करना है, दैट इज चिंतन. कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो एबल नहीं हूं, आई कांट डू दिस, दैट इज चिंता. हमें चिंता नहीं करनी है, हमें चिंतन करना है कि हमें उस चीज को प्राप्त कैसे करना है. तो स्ट्रेस फ्री रहना ये कृष्णा का मैसेज है. और स्ट्रेस जैसी चीज इस दुनिया में हो ही नहीं सकती, कुछ है ही नहीं. ये जो दिमाग में कचरा घुसा रखा है ना, इसको बाहर निकलो. ये क्या चिंता, क्या स्ट्रेस, कुछ नहीं. स्ट्रेस को स्ट्रेंथ बनाओ, स्ट्रेस भूल जाओ. अगर आपके ऊपर प्रेशर आता है, दैट इज इंप्रूविंग योर स्ट्रेंथ. ठीक है, अगर आपके ऊपर प्रेशर आता है अर्थात आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो. स्ट्रेस वर्ड को भूल जाओ, स्ट्रेस की जगह स्ट्रेंथ डाल दो. जब जब आपके पास में संघर्ष आ रहा है, स्ट्रगल आ रहा है, चीजें आ रही है, अर्थात वो स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, स्ट्रेस को नहीं बढ़ा रहा है. So remove stress word from your dictionary and add strength. Replace this word. बहुत चिंतन चिंता का जो आपने बताया वही. तो अभी कृष्ण भगवान का हर दिन वो एक मैसेज चलता रहता है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख तो इंसान. मैं इस पर आज इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि अभी लोगों को कर्म तो तब करेंगे ना जब स्ट्रेस फ्री होंगे. तो मैं चाहता हूं कि एक बार सभी हंसे, खिलखिलाए, प्रसन्न रहे, क्योंकि उनके जीवन से यह चाह चुका है. आज मैं जब लोगों के चेहरे देखता हूं ना, चाहे अमेरिका में, चाहे भारत में, चाहे दुनिया के किसी कोने में, तो उनके चेहरे पर एक नकली हंसी दिखती है. अंदर से कोई नहीं हंस रहा, अंदर से कोई खुश नहीं है. सब बाहर दिखावटी खुश है, हंस भी रहे हैं तो चार लोगों को ये दिखाने के लिए कि कहीं ने ये ना पता चल जाए कि मेरे जीवन में तकलीफ चल रही है. और ये जो बात बात पे हंसने वाले लोग हैं ना, ये बड़े धोखेबाज है. ये जो बात बात पे हंसने वाले लोग, चार लोगों के बीच में हंसी टिटोली का नाटक करने वाले लोग, ऐसे लोगों से सावधान. या फिर ऐसे लोग, ऐसा स्वभाव आप लोगों का बन गया है तो सावधान हो जाइए, ये बहुत गलत दिशा में जा रहा है. ये आपके अंदर की प्रसन्नता को, आपके आत्मा के असली स्वरूप को मार रहा है. आप हृदय से प्रसन्न होने के लिए बने, आपने जन्म ही इसलिए लिया है. क्या कर रहे हैं आप? इस चीज को मिटाइए और स्ट्रेस को स्ट्रेंथ बनाइए. बस दैट्स इट. बहुत अच्छा. वो प्रसन्नता का जो आपने अभी हमें एग्जांपल दिया, प्रसन्नता रहना है हमें. वेरी गुड. अभी मैं सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि वो अभी सेशन 1 का तो हमने बहुत अच्छे से गुरुजी ने हमें बताया कि कृष्णा's मैसेज टू यू, पर्टिकुलरली टू मी, टू यू, एवरीवन. आज मैं माफी चाहता हूँ, मैंने गीता या भागवत किसी का कोई प्रमाण इसलिए नहीं लिया क्योंकि वास्तव में भगवान कृष्ण के जीवन से हमें जो शिक्षा मिल सकती थी, हमें वो जानना ज्यादा जरूरी. इसलिए कृष्ण को एक नाम दिया गया मुकुंद. मुकुंद का मतलब जो सदैव मुस्कुराते रहते हैं. हमने ये बात कभी नोटिस ही नहीं की कि बचपन से लेकर अंतिम तक उनके जीवन में एक बात जो है हमेशा पैरेलल चली, वो है मुस्कुराना. तो इससे बड़ा मैसेज भगवान कृष्ण का और कोई नहीं हो सकता. मैं अभी गीता के 50 श्लोकों का अर्थ आपको सुना दूंगा. सब में आत्मा, परमात्मा, सबका कल्याण और जीवन का कल्याण, जीव मात्र की विवेचना, क्या अध्यात्म, क्या धर्म, इन सब का मैसेज उसमें है. लेकिन क्या आज की स्थिति में जहां पर आप लोगों के चेहरे पर जब मैं देखता हूं कि जो एक चीज की मिसिंग है, जो नहीं है, वो क्या? वो है खुशी. और मैं चाहता हूं कि भगवान कृष्ण के जीवन से उस संदेश को आपको सीखना है. कृष्ण क्या कह रहे हैं वो बाद में समझना है, कृष्ण ने जो जिया है उससे हमें संदेश लेना है. तो यह है कृष्णा's लाइफ मैसेज टू यू. वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत अच्छा. अभी हम सेशन 2 में चल रहे हैं. अभी सभी को मैं बता दूं कि सेशन 2 क्या है. तो सेशन 2 में हमने कबीर विजडम टीम जो है, उन्होंने थोड़ा सा जो बच्चों को जितना हमें मिल सके 2 दिन में, उसका हमने अप्रोच किया. उसको क्वेश्चन पूछा कि आपके जीवन में ये जो सभी कुछ है क्या मायने रखता है, आपका क्या सवाल है.
आपका अगर गुरुजी हमारे पास है, और गुरुजी जैसे आप हमने बताया उन लोगों के भाई गुरुजी जैसे आप जानते हो सिर्फ 27 इयर्स के हैं और उसके पास इतना नॉलेज है हमारे लिए, तो आप अगर कोई क्वेश्चन हमें दो तो हम गुरुजी से पूछ सकते हैं। और उनको हमने ये भी बताया कि भाई इट इज नॉट नेसेसरी टू बी ऑन जूम एट दैट टाइम व्हेन वी आस्क दैट क्वेश्चन, बट हम पूछ लेंगे गुरुजी को। गुरुजी का वीडियो भी आप बाद में देख लेना। अगर हिंदी में है इसका जवाब तो हम आपको हेल्प करेंगे इंग्लिश में दिखाने, ट्रांसलेट करने के। गुरुजी भी वैसे इंग्लिश में भी बोलेंगे थोड़ा थोड़ा, तो जैसे आपको उसका अच्छा सा एक आंसर मिल सकेगा, पर्सपेक्टिव ऑन दैट क्वेश्चन, कि भाई आपको पूरा जो ज्ञान है वो मिल सकेगा। अभी उसमें बाद में हमने वो जो जिससे क्वेश्चन लिया, बात कहीं बच्चों ने हमें दिया, आज सुबह में भी कहीं लोगों ने दिया हमें कि भाई हमारा एक क्वेश्चन है, हमारा एक क्वेश्चन है। इससे हमें पहले तो पता ये चला कि आज बच्चों भी कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, और वो भी गुरुजी से। दूसरा, हमने थोड़ा सा सिंप्लिसिटी कर दिया उन सभी क्वेश्चनों को लेके। तो पर्टिकुलरली यही क्वेश्चन पूछा किसी ने, ऐसा नहीं है, हमने थोड़ा सा उसमें एनालाइज किया हुआ है। तो गुरुजी, अभी पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों का क्वेश्चन है, और मैं अभी जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन मेरा खुद का है, क्योंकि मेरा भी यही क्वेश्चन होता है, मगर मैंने कभी उसका वो क्वेश्चन आउट मैंने दिया नहीं कि भाई ये मैं पूछूं आपको। उन लोगों ने मुझे गाइडेंस किया बहुत अच्छी तरह से। तो पहला क्वेश्चन लेट्स सी हम ये लेते हैं कि पहला क्वेश्चन उन लोगों का है कि स्पिरिचुअलिटी, बीइंग स्पिरिचुअल और गोइंग इनवर्ड, रिसर्चिंग इनवर्ड्स, और रिलीजियस, बीइंग धार्मिक। तो ये 3 वर्ड है, स्पिरिचुअल, इनवर्ड एंड रिलीजियस। तो ये 3 वर्डों में आप थोड़ा सा डेफिनेशन करके बताइए उसको। स्पिरिचुअल, रिलीजन एंड इनवर्ड, when you go research yourself, when you dig inside, आप जब ये अंदर प्रवास करते हो ना आपका, जैसे हम संतो बता रहे हैं हमें, कभी कभार कबीर जी तो बहुत बात करते हैं उसके बारे में कि आपके अंदर क्या है उसकी शोध करो। इसको हम इनवर्ड बोलते हैं, मगर आप डेफिनेशन करिए। देखो, आध्यात्म का तो मैंने 2-3 बार पहले भी आपको बताया कि आध्यात्म क्या है। मेरी दृष्टि में तो आध्यात्म स्वयं को जानना, पहली बात सिंपल सा है, स्वयं को जानना, मैं कौन हूं, यह आध्यात्म है। और मैं कौन हूं से लेकर के मुझे क्या प्राप्त करना है, ये जो यात्रा है इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल जर्नी, जो मैं पहले 2 सेशन में भी 1-2 बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और अमेरिका में पिछले 5-7 दिन से मैंने जितने सेशन हुए उसमें मैंने ये कहा है कि मैं कौन हूं, यह आध्यात्म है। अब इसके कई प्रमाण हैं, आप ढूंढ सकते हैं अलग अलग शास्त्रों में। गीता में भी है, परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते, जीवात्मा का चिंतन, उसके बारे में जानना, अर्थात जीवात्मा ही आध्यात्म है। गीता भी कह रही है, गीता के 8वें अध्याय में आप सर्च करिएगा, यह आएगा परमम स्वभावो मुच्यते, ये गीता के 8वें अध्याय में, क्योंकि आज कृष्ण का मैसेज है। फिर कबीर साहब ने भी अलग अलग पदों में, अलग अलग रमैनी साखियों में, और तुलसीदास जी ने, मीरा जी ने कई पदों में इस बात का विस्तार से वर्णन किया है आध्यात्म क्या है। तो आध्यात्म तो क्या है, जीवात्मा, अर्थात मैं कौन हूं इस बात को जानना, जो जान गए वही आध्यात्मिक है। ठीक है, मैं कौन हूं को जानना, यही आध्यात्म है। तो ये तो हो गया आध्यात्म का अर्थ। अब आता है रिलीजन, अर्थात धर्म। अभी अभी मैंने बातचीत में ही मैंने आपको बता दिया था कि धर्म अर्थात धारणा, जो धारण करने योग्य है वही तो धर्म है, जिसे धारण किया जा सकता है वही तो धर्म है। जो वास्तव में इस प्रकृति पे रह करके जीवात्मा का चिंतन करने हेतु जो हमें धारण करना है, जिन नियमों पर, जिन सिद्धांतों पर चलना है, जिस चीज की अनुभूति हमें करनी है, वही तो धर्म है। तो धर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आध्यात्म को जाना जा सकता है।
धर्म के बिना आप नहीं जान सकते कि जीवात्मा क्या है। तो सबके अपने अपने मार्ग हैं। और धर्म की पौराणिक परिभाषा क्या है? एक समूह में जब किसी चीज को माना जाता है, संकल्प लिया जाता है, वो धर्म है। और वहीं पे जिसे धारण करने योग्य वस्तुओं को जो चिंतन करता है, जिसे संकल्पबद्ध होकर के वो अपने जीवन में डालता है, वही धर्म है। तो धर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आध्यात्म को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात अगर कोई इस्लाम को मानने वाला है तो उनका अपना प्लेटफॉर्म है, उनकी अपनी धारणाएं, अर्थात उनकी अपनी मान्यताएं हैं। दे हैव ओन बिलीव्स कि वो क्या चाहते हैं, उनका क्या संकल्प है, उनके क्या विश्वास के मानक हैं। सबके अपने अपने बिलीव करने का, संकल्प लेने का, धारणा करने का कोई न कोई मार्ग है। इस्लाम का अपना बिलीव है, क्रिश्चियनिटी का अपना बिलीव है, लेकिन सनातन धर्म को हम मानने वाले लोग, हमारा भी अपना बिलीव। सब में ये तीन चीजें कॉमन है। बिलीव सबके अंदर है, संकल्प सबको लेना पड़ेगा। आप ये समझो कि संकल्प मुक्त होना यही धारणा है, यही धर्म है, तो बिल्कुल नहीं। कई लोग होते हैं, देखो इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। आप जितने लोग सुन रहे हैं मैं आपको बताता हूं, दो प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो संकल्पित होना नहीं चाहते, और ऐसे महापुरुष का प्रमाण देते हैं जिसने ये कहा, जैसे कि कुछ लोग हैं जो हमारे महापुरुष कबीर साहब ने कहा कि ये मत करो, पूजा करने से क्या मिलेगा। उन्होंने किस संदर्भ में कहा इसको जाने बिना सीधा कह देते हैं, महाराज पूजा करना, मंदिर जाना, पत्थर पूजना, ये ध्यान करना, भजन करना, ये सब ढोंग है, तो इसका मतलब कुछ मत करो। अर्थात वो स्वयं के आलस्य को और स्वयं की अकर्मण्यता को धर्म का नाम देते हैं और दुहाई देते हैं गुरु की, महाराज ये करना तो हमारा धर्म नहीं है। अरे धर्म तो धारणा है। जब तक आप संकल्प नहीं लोगे, जब तक आप यम, नियम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, योग, प्राणायाम, ये अष्टांग योग की जो अवधारणा महर्षि पतंजलि ने दी थी, जब तक आप अपने जीवन में कोई संकल्प लोगे नहीं, किसी वस्तु के प्रति आप संकल्पबद्ध नहीं होंगे, नियम धारण नहीं करोगे, आप किसी प्रकार के सिस्टम में अपने आप को नहीं ढालोगे, आपका धर्म कैसे आप जीवात्मा को प्राप्त कर सकते हो? तो सबसे पहले आपको यह धारण करना होगा कि मेरा धर्म क्या है। और वो धर्म क्या होगा? जो जीवात्मा का चिंतन करने के लिए प्रेरित करे। तो मेरा धर्म क्या है? जो जीवात्मा की ओर ले जाए। मेरा धर्म क्या है? जो इनवर्ड्स ले जाए। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है? रिलीजन को। रिलीजन का अगला स्टेप क्या है? स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअल के बाद इनवर्ड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने वो तीनों की डेफिनेशन भी दे दी, तीनों एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं और कैसे उसको फॉलो करना है। बहुत अच्छा। तो अभी दूसरा क्वेश्चन इसके रिलेटेड ही है, और आपने बताया कि जैसे पहले धर्म, स्पिरिचुअल, इनवर्ड्स, तो हम एक एक लेते हैं। अभी पहले देखो, पहले हम लेते हैं रिलीजियस, धार्मिक, धारण करना, संकल्प करना, जो आपने बताया। तो अभी देखो, मैं एक यहाँ पे हूँ और मुझे ये लगता है कि धर्म क्या बड़ी चीज है। मैं धर्म को मुझे नहीं मानना, तो क्या उसका धर्म का बेनिफिट क्या है? जैसे सामान्य लोगों को, मेरे जैसे बच्चों को जिन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको धर्म का इम्पोर्टेंस क्या लगता है? देखिए, जो धारण नहीं करेगा, जो संकल्पित नहीं होगा, जो धर्म को नहीं मानेगा, वो एक ऐसा स्वभाव है जो किसी चीज को स्वीकार करना चाहता ही नहीं। फिर वो बहुत जगहों पे चीजें स्वीकार नहीं करेगा। आप देखिएगा इस स्वभाव के लोग कई जगह पर देखना, वो जगह जगह ठोकरे खाएंगे, क्योंकि उनके अंदर अपना एक ऐसा स्वयं का ईगो है, स्वयं का अहंकार है, जो उन्हें रोकता है किसी चीज को मानने के लिए। वो सोचते हैं जो मैं कर रहा हूं वही धर्म है, और यहां से आप गलती कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वो धर्म नहीं हो सकता। आप गलत भी कर सकते हैं, आप सही भी कर सकते हैं,
तो ये इस तरह की सोच के लोग ही ना तो धर्म को मानेंगे, ना धर्म की व्यवस्था को मानेंगे। अरे हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे संतों ने पूरा पूरा जीवन खपा दिया संकल्पित होने के लिए, उस धारणा, जो धारण करने योग्य है उन वस्तुओं को समझने के लिए, उस धर्म को समझने के लिए उन्होंने पूरा पूरा जीवन खपाया। तब जाकर के उन्होंने कहीं जाकर के आध्यात्म की विवेचना की, तब जाकर वो जीवात्मा के स्वरूप को समझ पाए, तब जाकर के वो अंदर की चेतना को समझ पाए। अपनी आंतरिक चेतना को समझना भी तो आध्यात्म है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम तो नहीं मानते धर्म को, वो बहुत सारी चीजें नहीं मानते। वो प्रकृति के नियम को भी नहीं मानते होंगे, वो परिवार की व्यवस्था को नहीं मानते होंगे, क्योंकि उनके लिए जो वो सोच रहे हैं वही धर्म है। और ऐसा नहीं है। अपने अंदर की ईगो को निकालना होगा। हम जो सोच रहे हैं, हम जो विचार कर रहे हैं, यही धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो जो प्रकृति के अंदर जीते हुए, प्रकृति की किसी वस्तु को, प्रकृति के किसी तत्व को, किसी घटक को नुकसान ना पहुंचाते हुए, किसी भी जीव मात्र को तकलीफ ना देते हुए, किसी भी मनुष्य मात्र को कहीं पर भी किसी को संकट या चिंता या दुख ना देते हुए जीवन जीना और धारणा योग्य वस्तुओं को प्राप्त करना, धारण करने योग्य वस्तुओं को प्राप्त करना, धर्म की स्थिति को समझते हुए आध्यात्म को जीना, हम सबका उद्देश्य तो यही था। तो जो इस तरह से सोचते हैं हेमंत भाई, तो मैं उनके पक्ष में नहीं। आपको संकल्प तो लेना पड़ेगा। स्कूल जाना है तो स्कूल में आपको एंट्रेंस लेने के लिए एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपको 12th में पहुंचना है तो क्लास 1 में जाना पड़ेगा, फिर क्लास 1 को पास करके क्लास 2 में जाना पड़ेगा। और वहां पर हम सवाल नहीं करेंगे, वहां पे ये नहीं कहेंगे कि मैं तो ग्रेजुएट बिना स्कूल में जाके हो जाऊंगा। हो जाइए ना आप लोग ग्रेजुएट, देगा आपको डिग्री दुनिया का कोई व्यक्ति बिना स्कूल गए? कोई नहीं देने वाला। उसके लिए आपको पर्टिकुलर प्लेस पे जाना पड़ता है, आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद आपको डिग्री मिलती है। जब वहां पर आप सवाल नहीं करते तो धर्म की कक्षाओं में आने से पहले आपके मन में सवाल क्यों उठता है कि मैं नहीं मानता धर्म, मैं नहीं मानता इन नियमों को? ऐसा व्यक्ति बहुत सारी चीजें नहीं मानता होगा और वो बहुत ठोकरे खाएगा, बहुत तकलीफ खाएगा, जगह जगह से चोटें खाएगा, क्योंकि उसको कोई सलाह देने वाला तो होगा नहीं। जो स्वयं से अपने आप को बार बार खुद को सलाह देने वाला व्यक्ति जो है ना, वो इस दुनिया में बहुत तकलीफ पाएगा। और मैं नहीं चाहता कि कोई तकलीफ पाए। तो मेरी इस बात को जरूर माने कि आपको जो धारण करने योग्य वस्तुएं हैं उसको धारण तो करना पड़ेगा। वो बहुत, आपने मेरा दूसरा क्वेश्चन तो पहले से ही पढ़ लिया। जैसे मैं पूछने वाला था कि अगर मैं धार्मिक नहीं हूं तो मैं ये व्यवहारिक जीवन में अभी जो डे टू डे हमारी लाइफ होती है और समाज में जो लाइफ होती है, कम्युनिटीज में होती है, देश में होती है, तो ये इसमें हम लूज क्या करते हैं? आपने थोड़ा सा तो जवाब बता दिया, फिर से अगर आप बुरा ना माने तो फिर से थोड़ा बता दिया कि व्हाट डू आई लूज व्हेन आई डू नॉट फॉलो द रिलीजन। देखिए, आप लूज तो बहुत कुछ कर रहे हैं ना। जैसे कि पहली बात, अगर आप पर्टिकुलर किसी सिद्धांतों को नहीं मानते, आप कुछ तो मान रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आपका बिलीव है। आपका बिलीव इस बात में तो होगा ही ना कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है। आपका बिलीव इस बात पे तो होगा ही कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है। अगर आपका इस बात पे भी बिलीव नहीं है तो फिर आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। फिर तो आप बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिसमें आपको ये फोबिया हो गया है कि ना तो मुझे धर्म को मानना है, ना मुझे खुद की बात को मानना है। फिर आपको जल्दी से जल्दी किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपके माइंड को और आपकी स्थिति को ठीक करे। फिर तो आप बहुत गंभीर समस्या में। लेकिन अगर आप धर्म को मानते हैं, अच्छी बात है। अगर आप धर्म के उन पर्टिकुलर सिद्धांतों को जो धारण करने योग्य है, और हो सकता है कि वो धारणा आपको ठीक नहीं लग रही हो, तो आप कुछ न कुछ तो मान रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आपका बिलीफ है। चाहे खुद के विचारों को मानना ही आपका धर्म है, उसमें भी मैं कहता हूं कोई तकलीफ नहीं, लेकिन संकट बहुत है। इतनी ठोकरें, इतने अनुभव आपको प्राप्त करने पड़ेंगे कि आप अपने अनुभवों को करेक्ट करते करते पूरी जिंदगी आपकी खराब हो जाए। जब हम हमारे महापुरुषों और हमारे
श्रेष्ठ विचारकों के सिद्धांतों पर चलते हैं और उसे हम अपना धर्म मानते हैं, तो हमें कितनी सलाह मिलती है, कितना सहयोग मिलता है। ये वैसा ही है कि मैं विद्यालय में जाऊंगा लेकिन टीचर से नहीं पढ़ूंगा। मेरा धर्म तो खुद पढ़ना है। मैं डिग्री तभी लूंगा जब मैं खुद पढ़ूंगा। कितना टाइम लगेगा आपको हर सब्जेक्ट को समझने में? कितना टाइम लगेगा आपको a² + b² = 2ab समझने में? कितना टाइम लगेगा आपको ABCDF, क्यों A पहले आया, क्यों B पहले आया, क्यों C पहले आया, क्यों Z से शुरू नहीं हुआ, ये सब कुछ सॉल्व करने में कितना समय लगेगा? वहां पर जाकर के हम सवाल नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर ये बिलीव होता है कि जिस बिल्डिंग में, जिन दीवारों में मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं, जिस उम्र में मैं उन स्कूल्स में जा रहा हूं, मेरे साथ सैकड़ों हजारों की संख्या में मेरे जैसे बहुत लोग जा रहे हैं। अर्थात यहाँ पे जाऊंगा और यहां से जो मैं सीखूंगा वो शाश्वत सत्य ही सीखूंगा। यह भाव हमारे अंदर होता है, तब जाकर के हम डिग्री प्राप्त करते हैं। वैसे ही धर्म है। विदाउट बिलीफ देयर इज नो रिलीजन। सो महत्वपूर्ण क्या है? बिलीफ, विश्वास। जब तक विश्वास नहीं करोगे तब तक आपको धर्म क्या है समझ नहीं आएगा। तो हमें विश्वास करना सीखना है यहाँ पर। तो मेरा निवेदन है, जो ऐसा सोचते हैं कि धर्म के बिना की दुनिया क्या, और मैं जो कर रहा हूं उसमें मैं क्या खो रहा हूं, आप विश्वास खो रहे हो, विश्वास की ताकत खो रहे हो। आप उन सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या के जो विचारक हैं, जो आपकी मदद करने के लिए अपने विचारों को किताबों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, सिद्धांतों के माध्यम से समाज को देकर के गए, जिससे आप अपनी चीजों को जल्दी अचीव करो, धर्म को जल्दी से जान पाओ, आध्यात्म में जल्दी से उतर पाओ, इन इतने अमूल्यवान धन को आप लूज करोगे, खो दोगे। तो आप विश्वास को खोगे, आप हमारे महापुरुषों की इतनी बड़ी विरासत को खोगे, और ध्यान रखना उन सब के पीछे एक ही चीज छुपी है, वो है आपके अंदर का जॉय। उसको भी खो दोगे आप, क्योंकि आपको जॉय जो मिल रहा है ना, बिना इन चीजों पे विश्वास किए, वो अल्प मात्र मिल रहा है। आई मीन कि मैंने ये किया, मैंने ये अचीव किया, मेरे अनुभवों से ये रिजल्ट मिला, ये जॉय बहुत थोड़ा है, क्योंकि बहुत संघर्षों के बाद आपको कुछ मिलेगा। और मैं जिस जॉय की बात कर रहा हूं उसमें हर पल आपकी मदद करने वाले कोई ना कोई आपके साथ होंगे, और आप जल्दी से जल्दी हर दिन कुछ नया अचीव करने के लिए तैयार होंगे। हर दिन एक नया जॉय आपको मिलेगा, नई प्रसन्नता मिलेगी, जो आपके अंदर की इस विश्वास को और मजबूत करेगी। तो खोने को तो बहुत कुछ है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी देखो, चलो आपने बताया, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चलो मैं धार्मिक होना चाहता हूँ। मैं जैसे फर्स्ट स्टेप इन गोइंग टू बी रिलीजियस, राइट? तो अभी जो धार्मिक बनने के लिए मुझे मेरी जो डेली एक्टिविटीज होती है उसमें मुझे क्या करना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कैसे उसको मेंटेन करना चाहिए, वो आप बताइए। धार्मिक होने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए देखो कोई दैनिक दिनचर्या नहीं हो। दैनिक दिनचर्या होती है कि मैं धर्म के लिए समय कितना निकाल सकता हूं, उसके लिए। धार्मिक होने के लिए कोई दिनचर्या नहीं डिसाइड की जाती है, डिसाइड की जाती है कि मैं धर्म के लिए समय कैसे निकाल पाऊंगा जिससे मैं धार्मिक हो पाऊं। तो उसके लिए तो आपको एक अपने जीवन को नियोजित करना पड़ेगा। जैसे कि आप जिस आयु में, आप दिन में अगर जॉब करने के लिए जाते हैं, बच्चों के लिए फिर व्यवस्था अलग होगी, आपके लिए अलग होगी, और बुजुर्गों के लिए अलग होगी। मैं तीनों के लिए बता रहा हूं। अगर कोई युवा है, जवान है, बिटवीन 30 to 60 जो जॉब करते हैं, काम करते हैं, यहाँ पे अमेरिका में तो 70-75 तक जॉब करते हैं, 80 तक करते हैं कई लोग। तो अगर आप इस आयु में हैं कि आप जॉब करते हैं, आप लोगों के पास सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है? मॉर्निंग। बेस्ट समय कौन सा होता है? इवनिंग। इन दो समय को आप लोगों को ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से अपनाना चाहिए। अर्थात आप लोग, जैसे कि सुबह अगर आप 5:30-6 बजे या 6:30 बजे तक, तो अमेरिका में मोस्टली सभी लोग उठ जाते हैं। ये बहुत अच्छी आदत है यहाँ पे हो। वो अलग बात है कि आज के युग के बच्चे मुश्किल से उठ पाते होंगे, वीकेंड पे तो बहुत ही मुश्किल से, लेकिन अक्सर हम लोग 6:30-7 बजे तक उठ जाते हैं। उठते ही हमारे पास में एक मौका होता है ध्यान करने का, जाप करने का, सुमिरन करने का।
यहाँ पे हम लोग अगर एक सामान्य जीव हैं, अभी तक धर्म आध्यात्म के बारे में अभी तक कुछ नहीं समझते, तो उनके लिए मैं कहता हूँ कि उठते ही सबसे पहले हमारे शास्त्रों में उठते ही प्रातः काल का एक मंत्र दिया गया है, जिसे कहते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। यहां से हम ईश्वर के चिंतन को आरंभ कर सकते हैं। अगर आप 30 से 60 के बीच में हैं, तो आपके पास में सुमिरन यानी नाम जप करने का सबसे महत्वपूर्ण समय ये है। आप सवेरे उठते ही फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद में नाम जप करिए। भले आप स्नान भी बाद में करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार निवृत्त होकर के अपनी शारीरिक क्रिया से फ्रेश होने के बाद आप आइए और आप 1 घंटा या आधा घंटा, कम से कम आप लोगों को 30 मिनट्स तक जाप करने का मौका मिलेगा। चाहे जाप आप गुरु मंत्र का भी कर सकते हो, चाहे जाप आप अपने जिस भी संप्रदाय को, जिस भी गुरु को, या जिस भी ईश्वर को, चाहे कृष्ण को, चाहे राम को, चाहे शिव को, चाहे ब्रह्मा को, जिसको भी आप फॉलो करते हो, संतों में चाहे आप कबीर साहब को, मीरा जी को, तुलसीदास जी को, रविदास जी को, जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, रामानंद जी महाराज, जगत गुरु रामानंदाचार्य, भगवान कबीर साहब के जो गुरु थे, किसी को भी आप मानते हो, हर गुरु से आपको कोई ना कोई नाम मिलता है। अगर नाम नहीं मिला है, गुरु नहीं है जीवन में, अगर आप कृष्ण को फॉलो करते हो तो आप कुछ भी श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जो इस्कॉन का महामंत्र है प्रभुपाद जी द्वारा, फिर आप किसी का भी कर सकते हो। राम है, भगवान राम के आप उपासक हैं, तो आप राम का जाप कर सकते हैं। राम का जाप तो वो भी कर सकते हैं जो सगुण और निर्गुण दोनों धारा के उपासक हैं। तो राम तो बिल्कुल साकार से निराकार तक की यात्रा है, तो राम तो बड़ा अद्भुत शब्द है, राम का जाप कर सकते हैं आप। शिवोहम 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 शिवोहम, भगवान शिव के उपासक हैं। उद्देश्य वही है, अर्थ वही है, पहुंचना सबको वही है, शब्द अलग अलग है, हमारी श्रद्धा अलग अलग। आप मॉर्निंग में जाप करें, जाप करने के बाद फिर आप लोग संकल्प लें कि स्नान करेंगे, भोजन करेंगे और दुकान पे जाएंगे। अब जॉब करने वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी और दे रहा हूं, मॉर्निंग में अगर नहीं कर पाते हो तो बिफोर स्लीप, बिफोर गो टू बेड, आप विश्राम में जाने से पहले, ये आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है, उस समय में आप अगर नित्य 15 मिनट से ज्यादा करने की जरूरत नहीं, 15 मिनट एकाग्रचित होकर के कमरे में शांति से, दोनों पति पत्नी दोनों, अपनी पत्नी को, और अगर पत्नियां सुन रही है तो अपने पति को अपना आध्यात्म का सहयोगी बनाओ। आपका सहयोगी उससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता, ये मैं दावा करता हूं। आपका सबसे बड़ा सहयोगी अगर कोई होगा तो आपके कक्ष में, आपके घर में हर वक्त आपके साथ रहने वाला आपका साथी। देखो ये गृहस्थ की ताकत है। हाँ, ये आपकी ताकत हो सकती है। हम साधु संतों को तो कोई धर्मपत्नी होती नहीं, हमारे तो कोई गृहिणी होती नहीं, तो हमारे पास ये ताकत नहीं है। महाराज शक्ति स्वरूप आपके घर में है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप दोनों मिलकर के एक सही दिशा में ये कार्य कर सकते हो। रोज बैठिए और 15 मिनट तक सोने से पहले जाप, एक बार जाप सामान्य रूप से करिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको जाप का भी बड़े स्तर पे जाना, अभी सामान्य, फिर धीरे धीरे आपको जाप कैसे करना है, जाप को किस तरह से करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी तो एक सामान्य तरीके से आपको जो करना आता हो, चाहे राम राम करना आता हो, चाहे शिवोहम शिव, चाहे आप साहिब को मानने वाले सोहम करते हैं, सोहम, ये भी जाप कर सकते हैं। इसको 15 मिनट तक करिए, ये है आपकी दैनिक दिनचर्या। फिर आप क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या सोते हो, उससे मुझे कोई लेन देन नहीं, मैं तो धार्मिक दिनचर्या बताऊंगा। नहीं बोलता वो आपने बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल करके हमें बता दिया। अभी तो देखो, हम आपने हमारे बारे में तो बता दिया कि ऐसे 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 करना है। जैसे आप भी रिलीजियस पर्सन हो हमारी ओर से, तो हम तो ऐसे ही देखते हैं आपको। तो आप कैसे फॉलो करते हैं, आप क्या करते हो आपकी दिनचर्या में कि जैसे आप रिलीजियस, मुझे हेमंत भाई रिलीजियस याद आया कि मुझे बच्चों के और बुजुर्गों के बारे में बता। बच्चों के लिए मॉर्निंग में अगर टफ है तो बच्चे इवनिंग में कर सकते हैं। बच्चों के लिए दिन में एक बार, इवनिंग में, इवनिंग का टाइम 6:30 to 7:30 या 7 to 8, यहाँ पे टाइम जोन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा।
जब सूर्य अस्त हो जाता है उस समय में बच्चों से मेरा निवेदन है, जो मैंने चीज बताई 15 मिनट का जाप वो उस समय कर। और बुजुर्गों के लिए यू हैव अपॉर्चुनिटी ऑल टाइम, आप लोग कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, बुजुर्गों के लिए एक निवेदन है, जिस स्थिति में आप आराम से बैठ सकते हैं, बड़े बुजुर्गों से मेरा निवेदन है, जिस स्थिति में आप आराम से बैठ सकते हो, अगर आप पलथी मार करके नहीं बैठ पाते हो, अगर आप कमर सीधी रख के नहीं बैठ पाते हो, तो आप सहारा ले सकते हैं। जिस भी स्थिति में आप आराम से बैठ सकते हैं वैसे बैठ जाइए। एक बार बैठने के बाद बुजुर्ग कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे और उसके बाद आप लोग जाप कर सकते हैं। और बुजुर्गों से निवेदन रहेगा, जाप का थोड़ा सा ऊपरी स्तर, आप बुजुर्ग जितने भी हैं, जो भी 70 से अप हैं, आप लोग जाप को थोड़ा सा नई विधि से करिए, जैसे कि जिसे हम कहते हैं श्वासोश्वास का जाप। आपके लिए ये प्राणायाम जैसा होगा। आप लोग जब भी जाप करें, अगर आप राम का जाप करते हैं तो आपको कैसे समझना है, when you inhale it's ra, when you exhale then ma। ये सिंपल सी थ्योरी है। ये हो गया राम। सोहम अगर आप करते हैं, सो हम, आपको बिना बोले जाप करना है। बुजुर्गों के लिए मैं बता रहा हूं, आप लोग बैठिए अपने आसन पर जिस पे आप कंफर्टेबल। पैर दर्द करते हो तो पैर सीधे कर दीजिए, कोई नियम आपके लिए लागू नहीं होते। आपके लिए जिसमें आप आसानी से सहजता से बैठ सकते हैं वैसे बैठ जाइए। इनहेल सो, एक्सहेल म, इनहेल रा, एक्सहेल म, इनहेल शिवो हम। बहुत सिंपल है। तो आपने वो बताया, अभी बच्चों के लिए अब आपने मुझे मेरे बारे में पूछा था, मैं वो भी बता थोड़ा 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 एक क्वेश्चन रह गया था उसमें जी। तो देखो, जैसे बच्चे और जो जॉब करने वाले लोग हैं, जो इसको बता रहे थे आप, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे भी जब स्कूल से घर आ रहे हो और पेरेंट्स के कार में बैठे हैं तो तभी वो लोग कर सकते हैं इसके बारे में? नहीं, जाप के लिए अमुक स्थान को सिद्ध करना होता है मेरा। हाँ, ये बताना मैं भूल गया, आप अपने घर में एक स्थान को सिद्ध कर दीजिए जहां पर आप जाप के अलावा, पूजा के अलावा, पाठ के अलावा नहीं जाएंगे, जिसे हम मंदिर कहते हैं। उस जगह की वाइब्रेशन को खंडित मत करिए, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं, आप शुरुआत में हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आप लोग प्रो नहीं है कि आप कहीं भी बैठेंगे वहां पर आप अपनी स्थिति को, वहां की दशा को, वहां की स्थिति को पवित्र कर देंगे। आपके अंदर में इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा भर गई है कि आप जहां बैठेंगे वहां का ऑरा बदल देंगे। अभी हम बिगिनर्स हैं। हमें अपने घर में एक स्थान तय करना होगा जिसमें बिना पूजा और जाप के हेतु हम प्रवेश भी नहीं करेंगे। ये संकल्प, ये वचन आप लोगों ने मुझे देना पड़ेगा। सभी लोग मुझे वचन दें, अपने घर के मंदिर में एक स्थान, मंदिर का स्थान ऐसा चयनित कर लीजिए जिसमें जाप के बिना, पाठ के बिना, पूजा के बिना आप प्रवेश भी नहीं करेंगे, बिना हेतु नहीं जाएंगे, उसकी वाइब्रेशन को खराब नहीं करेंगे। और मंदिर के पट हमेशा बंद रखें, खुले नहीं। घर में क्या बोल रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, दो बातें ऊपर हो रही हैं, इधर उधर की बातें हो रही है, जगत की, भौतिक जगत की, भौतिकवाद की, भोग विलास की, दुनिया भर की जो भी बातें आप लोग करते हैं, ये सब बातें उस तक न जाने दें। अपनी वाइब्रेशन को घर में दूसरी जगह जो रखना है। इसलिए मैं कहता हूं, बिफोर बेड भी अगर आपको करना है ना, तो जाना मंदिर ही है, नॉट ऑन बेड। समझ गए? हमें पर्टिकुलर उस प्लेस को सिद्ध करना होगा और अपने आसन को सिद्ध करना। तो बच्चे कार में आते जाते ना, दे आर बिगिनर्स राइट नाउ। सो अभी वो इस स्थिति में नहीं है कि वो कहीं भी कर सकते। बाकी भजन के लिए कोई मना नहीं, भजन कहीं भी हो सकता है, भजा जा सकता है, जाप कहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं अभी आप लोगों को और नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा हूं। तो पहले आप एक आसन को, एक स्थान को सिद्ध करिए। सिद्ध करने का मतलब वहां जाने पर स्वयं ही आपके मन में भाव आना चाहिए कि अब मैं कर सकता हूं। ऐसा सिद्ध हो जाएगा आपका आसन कि हर दिन आप 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18 मिनट तक करेंगे।
हर दिन 1 मिनट बढ़ेगा आपका, मैं प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन आप अपने आसन और अपनी जगह को चेंज मत करें। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा अनुभव है कि इवनिंग में आरती करने जब वो जाते हैं, दिया करने, उस समय में वो उस मंदिर में बैठकर 15 मिनट तक जाप करें। और गुरुजी एक और चीज बताना चाहता हूँ आपको कि आप, हमने जो क्वेश्चन आपको लास्ट पूछा कि आप क्या कर रहे हो मैं being अपना religious, बता, तो मैं अभी ये कर रहा हूँ कि थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है अभी, तो वो पूछ लेता हूँ पहले आपको, बाद में आप सभी को मिला के आप क्या कर रहे हो उस बताना मुझे। जी। तो अभी फिर से हम पीछे जा रहे हैं। पहले मैंने बताया था स्पिरिचुअल, बीइंग रिलीजियस, गोइंग इनवर्ड्स। तो अभी दूसरा, जैसे आपने बताया था कि धर्म के बाद जो चालू होता है वो स्पिरिचुअलिटी चालू होती है। तो अभी आप स्पिरिचुअल के लिए बताओ कि स्पिरिचुअल जैसे हमने रिलीजन में दिया और देखा, इसी तरह से आप स्पिरिचुअल में हमें बताना अभी। तो अभी अगर आपको कुछ भी नहीं, तो स्पिरिचुअल का जो, जैसे हमने रिलीजियस से स्पिरिचुअल में जाना है तो कैसे जाए वो बताइए, और तभी स्पिरिचुअल की डेफिनेशन बताइए, बाद में वो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्पिरिचुअल की डेफिनेशन तो मैं पहले बता ही चुका हूँ, राइट, वही फिर से अगर हो गीता के सके। आधार पे भी, परमम स्वभावोत्मुच्यते, परमम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते। ठीक है, जो जीवात्मा का चिंतन हो जाए, जो जीवात्मा का बोध कराए, जो हमारे अंदर की चेतना को सचेतन अवस्था में ले जाए, तो ये सचेतन होना ही आध्यात्म है। तो आध्यात्म की परिभाषा तो आप समझ ही रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं। तो जिन्हें सचेतन होना है, जिन्हें अपने अंदर की चीजों को जानना है, जागृत होना है, वह आध्यात्मिक हो सकता है। और अध्यात्म के लिए अब आपको क्या करना है, अध्यात्म की परिभाषा तो ये है। तो अध्यात्म के लिए आप, सिंपल सा लॉजिक है, जब आप अंदर में देखने लग जाते हैं, जब आप अपने अंदर में झांकने लग जाते हैं, जब आप जीवात्मा के बारे में चिंतन करने लग जाते हैं, तब आप कितने सूक्ष्म जगत का चिंतन करने के लिए तैयार होते हैं। विचार करिए, आप कितने ज्यादा सत्य, प्रेम, करुणा, इन भावों को प्राप्त कर लेंगे, इन गुणों को प्राप्त कर लेंगे। जब आदमी जानने लग जाता है कि मैं जीवात्मा हूं और मेरा उद्देश्य तो ईश्वर को प्राप्त करना है, तब वो स्वतः ही सत्य पर चलना शुरू हो जाए। क्यों आध्यात्मिक होना जरूरी है? कि वो आध्यात्म का जब चिंतन करता है, जीवात्मा का जब चिंतन करता है, स्वतः ही उसके हृदय में प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है। वो प्रेम करना शुरू करता है लोगों से। क्यों मैं लोगों के साथ झगड़ा कर रहा हूँ, क्यों मैं लोगों के साथ वाद कर रहा हूँ, विवाद कर रहा हूँ, क्यों मैं लोगों के साथ में ये दुनिया भर के मैंने विवाद खड़े कर रखे हैं, क्यों मैं किसी को हर्ट कर रहा हूं, क्यों मैं स्वयं को विद्वान और दूसरों को बुद्धू घोषित कर रहा हूं, क्यों मैं स्वयं को श्रेष्ठ बनाने की दौड़ में लगा हूं। जब आदमी सत्य, प्रेम और करुणा का उपासक हो जाता है ना, ये तभी हो सकता है जब वो जीवात्मा का चिंतन करना प्रारंभ, जब उसे पता चल जाता है कि मेरा उद्देश्य ये सब करना नहीं था, मेरा उद्देश्य नंबर 1 बनना कभी नहीं था, मेरा उद्देश्य तो नंबर से बाहर निकल के, प्रतिस्पर्धा से बाहर निकल करके, सबको प्रेम, स्नेह, सबको करुणा भाव से अपने सामने के संसार को, अपने आसपास के संसार को बेहतर बना करके इस चेतना को परम चेतना में विलीन करना था। जब आदमी को अपना उद्देश्य पता चल जाता है, तो वो न तो प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, न प्रकृति पे उपस्थित किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाता है। तो आध्यात्मिक होना कितना अच्छा है कि हम पूरी जिंदगी बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी दुख के, बिना किसी तकलीफ के, स्मूथली, बहुत हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ जिएंगे। कौन नहीं चाहता ऐसा जीवन, बताइए। दुनिया के अमीर से अमीर व्यक्ति को, दुनिया के समृद्ध से समृद्ध व्यक्ति को अगर आप पूछोगे तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है, तुम क्या अचीव करना चाहते हो, क्या बोलेगा वो? कह देगा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूं। बन गया तू अमीर। कह देगा दुनिया पूरी खरीदना चाहता हूं। खरीद ली तूने दुनिया। उसके बाद तू क्या करना चाहेगा? वो यही करना चाहेगा ना कि मेरी आंखों के सामने ना तो मैं किसी को तकलीफ में देखूं और ना मैं किसी तकलीफ में जीऊं।
ना तो दूंगा ना जीऊंगा। इससे ज्यादा तो और क्या कल्पना करेगा व्यक्ति। तो आध्यात्मिक होना इसलिए आवश्यक है कि हम इस भाव को जागृत कर पाए कि हम चाहे कुछ भी प्राप्त कर लेंगे, तब भी हमारा उद्देश्य तो प्रसन्नता, आनंद और किसी को पीड़ा न देना है। सबको प्रसन्न रखते हुए मीन्स सब में प्रसन्नता का भाव जागृत करते हुए, क्योंकि किसी के दुख और सुख का ठेका हमने नहीं ले रखा, पर हम अपने आसपास में ऐसी परिस्थिति बनाएंगे कि हमारे कारण किसी को तकलीफ ना पहुंचे। इस तरह का जीवन जीना ही आध्यात्मिक जीवन जीना है, क्योंकि जिसको जीवात्मा का बोध हो गया उसका जीवन उस दिशा में चला जाएगा। That's it. तो फिर जो रिलीजियस, अगर मैं रिलीजियस बन गया, बाद में मैं सोचता हूँ कि अभी स्पिरिचुअल तो नहीं बनना हमें। नहीं, संभव ही नहीं है। जो सिद्धांतों पर चलेगा वो एक ना एक दिन आध्यात्म के रास्ते पे आ ही जाएगा। तो ये तो दिमाग के खेल है कि धार्मिक होने के बाद मैं आध्यात्मिक नहीं होगा, संभव ही नहीं। संभव नहीं। वो तो फिर ये तो ऑटोमेटिक स्टेप हो गया, जैसे हम एयरपोर्ट पे एक्सीलेटर में जाते हैं, आप जैसे तंग आ ना जाओगे प्लेटफॉर्म पे खड़े खड़े, कभी तो आध्यात्म की ट्रेन में चढ़ोगे ही चढ़ोगे। अच्छा, वही है जी। अच्छा, दूसरा उसमें उसमें ये है कि अगर मुझे स्पिरिचुअल बनना है तो मैं क्या प्रैक्टिस करूं? फिर से वो जो पहले रिलीजियस का क्वेश्चन था, अभी स्पिरिचुअल के लिए है। क्या प्रैक्टिस करूं? कैसे करूं? ये आपने शुरुआत बताया कैसे कि करूं? ये अभी आपने बताया कि रिलीजियस जैसे ना प्लेटफॉर्म पे जाने का है, और जो बस जो ट्रेन आती है उसमें जाने का, वो स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं ना, प्रोग्रेसिव नेचर फ्रॉम देयर, राइट? तो अभी जैसे मैं रिलीजियस बन गया, अभी मुझे स्पिरिचुअल ट्रेन में कैसे चढ़ना, क्या करना है मुझे? जैसे बिल्कुल आपने पहले भी बताया कि जैसे बिल्कुल भगवान का नाम देना है शाम सुबह, वैसे कुछ। समझ गया। देखिए, सीधी सी बात है, आप पहले तो अपना मार्ग चुन लीजिए। आपको कौन से मार्ग से, धर्म के कई मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, अध्यात्म साधना मार्ग है, जिसे उपासना मार्ग भी कहते हैं। तो मार्ग कई है। आप अपने स्वभाव के अनुरूप जहां पर आपको ठीक लगता है, जिस गुरु का विचार, जिस महापुरुष का विचार, जिस ईश्वर के स्वरूप को आप पसंद करते हैं, सब देखो, इंसान अलग अलग वृत्ति, अलग अलग स्वभाव और अलग अलग चीजों के हिसाब से बना है। किसी को शिव का स्वरूप अच्छा लगता है, उनका स्वभाव अच्छा लगता है, उनके उनके क्रियाकलाप अच्छे लगते हैं, वो शिव के मार्ग को अपनाए। सभी पहले तो अपना मार्ग तय करें कि आप कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलती है और कहाँ से आप कनेक्ट होते हैं। पहली चीज, जिस दिन यह तय हो जाए कि मेरा तो इष्ट यही है, मुझे इनको देख करके आनंद आता है, इनकी फिलॉसफी पे आनंद आता है, चाहे गुरु हो और गुरु के माध्यम से अपने इष्ट को प्राप्त करने का भाव, पहले मार्ग तय करें। और जिस दिन मार्ग तय हो जाए, उस दिन उस मार्ग के माध्यम से हमें स्पिरिचुअलिटी की ट्रेन में कैसे बैठना है उसका चिंतन करना। जैसे कि अगर आपका तय हो जाए कि भगवान कृष्ण की फिलॉसफी पर हमें ईश्वर को प्राप्त करना, या कबीर की फिलॉसफी पर ईश्वर को प्राप्त करना, तो कबीर की फिलॉसफी तो आपको सीधा ही पगडंडी है, कहते हैं वो तो पगडंडी है, वो तो सीधा है, शॉर्टकट है। आप सीधा निराकार के चिंतन की ओर पहुंचते हैं। कठिन है, जानना बहुत मुश्किल है। अगर कृष्ण की फिलॉसफी है तो साकार से शुरुआत होती है। भगवान कृष्ण को बाल रूप से धारण करते हैं, उनके श्रृंगार से स्टार्ट होता है उनका पूजन। फिर धीरे 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 कृष्ण के स्वरूप से हम बाहर निकल के हमारे कृष्ण कहाँ बैठ जाते हैं? हमारे मन मंदिर में। तो आध्यात्म को पाने के लिए अलग अलग मार्ग है। अगर कृष्ण को फॉलो करने वाले हैं तो वहां पर मार्ग अलग है, और अगर आप जैसे कबीर को फॉलो करते हैं तो वहां तो सीधा निराकार नाम राम है, वहां तो सीधा ही आपको उस तत्व को जानना है। तो वहां पर तो आपका धर्म क्या है? कबीर साहब के बताए हुए सिद्धांतों पर चलना और इन सिद्धांतों के सही अर्थ जानना, सही मायने जानना। जो आप सोच रहे हैं वो सिद्धांत नहीं हो सकते। उसके लिए उचित गुणी महापुरुष गुरु से आप उस सिद्धांत को जानिए कि वास्तव में कबीर साहब इस पद और इस शब्द और इस वाणी और इस दोहे के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। उनके सही अर्थों को निकाल करके अपने जीवन में धारण करके फिर आप अध्यात्म के चिंतन की ओर आगे बढ़ेंगे। और उसमें अध्यात्म की अवधारणा सिंपल सी है,
वो भी अपनी वाणी और विचार के माध्यम से जीवात्मा का चिंतन कराएंगे कि मैं कौन। अब मैं कौन हूं ये बता ही देता हूं। मैं हूं जीवात्मा, जो इस शरीर के अंदर, जो चैतन्य ये है। तो शरीर क्रिया कर रहा है, ये जिस दिन बंद हो जाएगा, ये चैतन्य शरीर छोड़ करके बाहर निकल जाएगा, तब इस शरीर का कोई वजूद, जिस शरीर को लेकर मैं अहंकार कर रहा हूं, जिस रूप को लेकर मैं अहंकार कर रहा हूं, जिस शरीर की बनावट को लेकर के, इस शरीर की व्यवस्थाओं को लेकर, इस शरीर से के हेतु कपड़ों को लेकर, इस शरीर के हेतु साज सज्जा के सामान को लेकर, इस शरीर की पूर्ति हेतु जिस मकान को लेकर, इस शरीर की सुविधा हेतु जिस गाड़ी को लेकर, इस शरीर की आसक्तियों को, इस शरीर की चाहतों को लेकर, जो शरीर जिसके प्रति आसक्ति रखता है, उस वस्तु के प्रति आकर्षण को लेकर मैं जितना मोहित हो रहा हूं, जितना जितना चिंतित हो रहा हूं, आखिर में तो यह शरीर इस चेतन अवस्था के कारण क्रिया कर पा रहा है। जब यह चेतन अवस्था ही इस पूरे शरीर की मालिक है, तो मैं कौन होता हूं? अपने आप को संसार की व्यवस्था का मालिक समझने वाला। यह है जीवात्मा का चिंतन। यह ध्यान करना कि मैं कौन हूं। मैं तो वो हूं ना जिसने इस शरीर को प्राप्त किया 84 लाख योनियों के बाद, अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म फिलोसॉफी। मैं तो वो हूं ना जो बड़ी मुश्किल से मनुष्य बना, इससे पहले न जाने में क्या क्या बना। मैं तो वो हूं ना जो बड़ी मुश्किल से यह शरीर प्राप्त किया हूं, इससे पहले न जाने में क्या क्या बना। फिर आप बताइए, फिर मैं किस बात का अभिमान कर रहा हूं? किस रंग का, किस रूप का, किस व्यवस्था का अभिमान कर रहा हूं? मुझे तो आखिर इस शरीर को छोड़ना है, यह निश्चित है। यह अटल सत्य है कि मुझे इस शरीर को तो मरना है, लेकिन मरने से पहले मैं अपने क्रियाकलापों के द्वारा ऐसा कार्य करूं जिसमें मेरी आत्मा मुक्त हो जाए, उसको किसी प्रकार का रिग्रेट ना हो, किसी प्रकार का गिल्ट ना करना पड़े। ऐसा कार्य मैं करूं जिससे मैं उस परम चेतना को प्राप्त कर लूं। दैट्स इट। बहुत अच्छा रहा आपने। तो अभी वो स्पिरिचुअल कोई बताया आपने, अभी हम इनवर्ड पे जाते हैं। जैसे हमने पहले बताया था कि भाई इनवर्ड क्या है, जैसे गोइंग इनवर्ड, गोइंग इनसाइड, स्टडी योर ओन सेल्फ। तो इसके बारे में क्या बताएं? क्या कह रहे हैं आप? वो इनवर्ड, जैसे ना हमने पहले बात किया था कि रिलीजन, स्पिरिचुअल और इनवर्ड, तो आपने हाँ, बोला पहले इनवर्ट तो अंदर के, जो संसार आप बाहर देख रहे हो वही संसार आपके अंदर है। वही पंच भौतिक स्वरूप आपके शरीर के अंदर है। अंदर भी वही नाद, आनंद, कीर्तन, आवाजें, अंदर भी तो शरीर क्रिया कर रहा है। अंदर भी तो मशीनरी वर्क कर रही है। जैसे दुनिया में विकास हो रहा है, अंदर भी तो विकास हो रहा है। बालक था, बालक से शरीर बड़ा हुआ और बढ़ता गया और बढ़ता गया और आधे बूढ़ा हो गया। इस बात का चिंतन करना, इनवर्ड्स जाने का मतलब इन बात का चिंतन करना कि मैं कहां से कहां तक आ गया, कितना सा था, क्या सोचता था, किसके अधीन था। माँ माँ कर करके रोटी खाता था, माँ माँ पुकार करके सबको रिझाता था। फिर मैं खेल कूद में अपने आप को उलझाया, फिर मैं पढ़ने के लिए तैयार हुआ, फिर मैं बड़ा हो गया। बड़ा हुआ तो अपनी युवती के संग, जिससे मैं प्रेमिका मानता हूँ, जिसे मैं अपनी पत्नी मानता हूँ, उसके संग अपना जीवन जी रहा हूँ। अंदर की यात्रा को भूल करके बाहर की यात्रा को जी रहा हूँ। अब मैं बूढ़ा हो गया। अंदर इस शरीर, ये मशीनरी तो वर्क कर रही है, विकास कर रही है, नित्य निरंतर विकास हो रहा है। जैसे बाहर की सृष्टि में निरंतर विकास हो रहा है, अंदर भी तो निरंतर विकास हुआ। कितने स्वरूप बदले, सफेद काले थे सफेद होने लग गए। चमड़ी हमारी बड़ी एकदम चमकदार थी, आज ये चमड़ी जो है मुरझाने लग गई। अब तो ऐसी स्थिति में आ गई कि ये चोला भी वस्त्र बदलने वाला है। अब तो यह भी बदलने वाला है। अब तो ऐसा स्थिति आ गई है। इसलिए कहते हैं जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी,
मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब आप जीवात्मा का चिंतन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब आप ये भी तो जानेंगे सूक्ष्म जगत के बारे में कि इस अंदर के संसार में भी तो कई प्रकार का शोर है, कई प्रकार की आवाजें हैं, लेकिन मैं प्राणायाम, योग, साधना, ध्यान, समाधि के माध्यम से मैं इस अंदर के संसार के विकास के बीच भी मेरी अंदर बैठी इस चिड़िया को, वो एक भजन था ना, उस दिन उन्होंने बताया था, इस कीड़ी को, कीड़ी बाइनू, क्या था वो भजन? वो कीड़ी के पांव झांझर बोले वाला मैं बता दूं, कीड़ी बाई चालिया सासरे ने नवमण काजल साथ उलटवाणी में उलटवाणी में। तो ये कीड़ी बाई को है ना सासरे चलना है। समझ गए? हमें अंतर के इस संसार के बारे में, सूक्ष्म जगत के बारे में तब जानेंगे जब हम इन बाहर की आंखों को बंद करेंगे, तब हम इन वर्ल्ड्स को जानेंगे। ये बंद होते ही अंदर का प्रकाश शुरू हो जाएगा। अभी तो हमें कितना कुछ करना है, ये बाहर वाले नॉइज को बंद करना है, बाहर वाले दृश्यों को बंद करना है, अंदर की आवाजों को सुनना है, आंख बंद करके अंदर के संसार को देखना है, और न सिर्फ देखना है, इस संसार को समझने के बाद फिर उस परम चेतना की ओर आगे बढ़ना है। तो वो ब्रह्मनाथ बोलते हैं उसे हमारे महापुरुषों ने तो दशम द्वार से प्राण को निकाला है, अर्थात उन्होंने कितना अद्भुत ध्यान किया, अपनी चेतना को कहां पर स्थापित कर दिया, और जब चाहे तब मैं अपने शरीर के प्राण निकालूं। मतलब प्राणों पर भी सिद्धस्तता हासिल कर ली है। आप लोगों के हाथ में अपने आप को मार सकते हो कभी? खुद से कोशिश करके देखो, रोक के देखो, नाक कान मुंह बंद करके देखो, नहीं रोक पाओगे आप सांस को। लेकिन उन्होंने सांस को यहां चढ़ा करके दशम द्वार से श्वास को निकाला। मुक्ति का कैसा स्वरूप है देखो आप। उन्होंने अपनी चेतना को इस स्तर पर ले गए और वहां तक पहुंच गए कि उनकी मुक्ति दशम द्वार से हुई। हर कोई के भाग्य में दशम द्वार से मुक्त होना नहीं लिखा है, उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती, बहुत जाप करना पड़ता है। तो इसलिए ये रिलीजन, स्पिरिचुअल और इनवर्ड, इन तीनों के बारे में पैरेलल समझना। पहले रिलीजन को समझा, फिर स्पिरिचुअल को, और फिर इनवर्ड, फिर अंदर क्या क्या है उनको जाने। तो ये इनवर्ड जो अंदर की यात्रा की बात करें हम, तो वो क्या जरूरी है, और अगर जरूरी है तो क्या उससे बेनिफिट क्या होता है, और क्या हम लूज करते हैं? उसके बिना तो आप अपने लक्ष्य को पा ही नहीं सकते ना। जीवात्मा का स्वरूप जानना और इनवर्ल्ड्स को जानना ये एक जैसा ही है। जब आप बाहरी चीजों को बंद करेंगे तब अंदर की चीजों को सुनेंगे और जानेंगे, और जब अंदर की चीजों को जानेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इस जीवात्मा को ले जाना कहाँ है, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है। तो इनवर्ड्स आपको अंतिम लक्ष्य तक ले जाते हैं। तो अभी इनवर्ड्स हमें करने के लिए कोई प्रोसीजर बता दीजिए। पहले रिलीजन क्लियर, फिर अध्यात्म, देन इनवर्ड प्राप्त करने का प्रोसीजर। तो पहले रिलीजन क्लियर करो और फिर आध्यात्म को क्लियर। ये दो चीजें करना जरूरी है। पहले अंदर की चीजों को तो अनुभूति है, वो मेरी अनुभूति क्या है, आपकी अनुभूति क्या होगी, उस पर फर्क हो सकता है। तो अंदर की अनुभूति को हम तब करेंगे ना जब पहले हम उस स्थिति में आ जाएंगे कि हम अंदर की अनुभूति तक पहुंच गए। मैं तो कर पा रहा हूं, मैंने अभी आंख बंद किया, मैंने अपने आप को महसूस किया अंदर में। तो इसीलिए जो आपने बताया कि जैसे हमारे सिलेबस में क्या है कि पहले ये करना, बाद में ये करना, बाद में ये करना, तो गोइंग अपवर्ड्स, जैसे ना लेडर चढ़ने की जैसा होता है ना, जैसे हम कोई क्लाइंब कर रहे हैं, कोई ऊपरी और जा रहे हैं, वैसे वाला। अभी तो आपने हमारे बारे में तो सभी कुछ बताया कि हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है। अभी आप क्या कर रहे हो, आपने कैसे किया,
क्योंकि जब भी आपने संन्यास लिया, हम तो बहुत प्राउड है कि आपने 4 साल में संन्यास लिया था, जब भी आपकी एज 4 इयर्स की थी। तो 4 साल के बाद जो आपने ये जो पूरा सिद्ध किया हुआ है, जैसे पहले आप रिलीजियस बने, स्पिरिचुअल बने, इनवर्ड्स आपने ट्रैवल किया, अंदर अंदर गए, तो ये सब भी आपने कैसे किया? और तभी जैसे आपका इंस्पायरेशन क्या था, कैसे स्टेप आप निकले, और अभी उसका क्या कर रहे हो, अभी आप कैसे मेंटेन कर रहे हो उसका? ये तो सब गुरु की कृपा से संभव हुआ, गुरु कृपा, गुरु मार्गदर्शन से संभव हुआ। मैं बहुत सौभाग्यशाली, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे हर क्षण हर कदम पे गुरु का साथ रहा। मेरी हर परिस्थितियों में, हर स्थितियों में उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। मेरे अंतर मन के उठ रहे हर सवालों का जवाब देने वाला मेरे पास कोई था, और हर वक्त था। इसलिए मैं कहता हूं, आपके जीवन में हर वक्त, हर समय एक ऐसा गुरु होना बहुत आवश्यक है, जो आपके हर परिस्थिति में हर उठ रहे सवालों का जवाब दे पाए। मुझे कल भी किसी ने पूछा था कि महाराज जी, मैं 20 साल से ध्यान कर रही हूँ, 20 साल से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, फिर भी मेरा स्वभाव, मेरा एंगर, मेरी चीजें कई बार मुझे विचलित कर देती हैं, तो मेडिटेशन से ये कैसे कंट्रोल हो? मैंने कहा, मेडिटेशन से आपको अपना स्वभाव क्यों बदलना है? मेडिटेशन से तो आपको इस तरह की स्थिति लानी है ना, कि जिससे आप हर तरह के स्वभाव को समझ सकें। अपने स्वभाव को बदलना मेडिटेशन का उद्देश्य नहीं होता है। साधना का उद्देश्य आपके स्वभाव को बदलना नहीं है। साधना का उद्देश्य आप हर तरह के स्वभाव में ढल जाएं, ऐसी स्थिति लाना है। वैसे ही मैंने बचपन से अपने गुरु से यही सीखा कि मुझे अपने आप को किस तरह से अपने लक्ष्य पर ले जाना है। मेरा डेली रूटीन बहुत सामान्य है। जैसा कि मुझसे पूछा जाता है कि महाराज जी, आप सन्यासी कैसे बने? 4 साल की एज में ऐसा आपने क्या सोच लिया? ऐसा भी कोई सवाल पूछा ही गया है, कईयों के द्वारा पूछा गया, मुझसे पहले भी पूछा गया। मैं आज फिर बता देता हूँ, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक चमत्कार नहीं है, और मैं चमत्कारों में कम विश्वास करता हूँ। इसके पीछे आपका भाग्य है कि आपको ऐसे गुरु का मिलना। दूसरा, आपके प्रारब्ध कर्मों का कोई ऐसा जोर कि मेरे माता पिता को जब गुरु जी के द्वारा कहा गया कि इस बालक में आध्यात्मिक ऊर्जा है, ये धर्म के लिए कार्य करने योग्य है, अगर मेरे माता पिता ना मानते तो जरूरी नहीं है कि मैं साधु होता, मैं आध्यात्मिक जरूर होता, क्योंकि जो ऊर्जा गुरु जी ने देखी थी वो तो मुझ में थी। पर इसका बोध अगर कोई मुझे कराने वाला नहीं होता तो मैं आध्यात्म के शिखर पे नहीं होता। मैं ये भी नहीं कहता कि अभी मैं आध्यात्म के शिखर पे हूं, लेकिन उस शिखर को प्राप्त करने की यात्रा में मैं जरूर हूं। अर्थात आध्यात्मिक तो मैं होता, लेकिन आध्यात्म का बोध कराने वाला अगर कोई नहीं होता, ज्ञान कराने वाला अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता, तो मैं आध्यात्म की इस यात्रा में यहां तक नहीं होता जहां मैं आज हूं। पहली बात तो बचपन में मेरे गुरु ने जब मेरी माता से कहा, मेरे पिता से कहा कि इस बालक में आध्यात्मिक ऊर्जा है, ये सन्यासी बनने के लिए पैदा हो। अब तुम इसको जबरदस्ती कुछ और बनाओ तो अलग बात है। मेरे प्रारब्ध कर्मों का, मेरे पिछले जन्मों के कोई पुण्य कर्म थे जो उदय हुए इस जन्म में, और मेरे माता पिता ने सीधा कहा कि गुरुजी, आपका जो आदेश है वो सर आंखों पर ले जाइए इस बालक को। मैं एक ही पुत्र था मेरे माता पिता का, 2 बेटियां हैं, मेरी 2 बड़ी बहनें हैं इस शरीर की, मैं एक ही पुत्र था, और मुझे गुरु के पास भेज दिया। लेकिन मेरा भी आनंद देखिए कि गुरु का हाथ जिस दिन थामा, मुझे याद है दोपहर का, संध्या का समय, बीच का समय था, हम गुरुजी के साथ निकल पड़े थे बस में बैठ करके आश्रम के लिए। जैसे मैं आश्रम पहुंचा, अगले दिन सुबह उठ करके आश्रम में मैंने फिर पीछे मुड़ करके कभी गुरु और माता जी से, आश्रम में जो गुरु माँ है हमारी और गुरु जी हैं, उनसे कभी मैंने ये नहीं कहा कि मेरे माता पिता कहाँ है, मुझे यहाँ क्यों लेके आए। वो दिन से लेके आज तक मुझे, मेरी स्मृति में कभी उनके प्रति वो आकर्षण नहीं था कि वो क्यों नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने माता पिता, जो मेरे शरीर के माता पिता है, उनके प्रति कर्तव्यबद्ध नहीं। आज भी अगर उन्हें आवश्यकता पड़े, उन्हें आध्यात्मिक चेतना ऊर्जा की आवश्यकता हो, उनके जीवन में अगर वो कुछ ना कर पाए, कुछ सामर्थ्यवान ना रह पाए, वो ऐसी स्थिति में आ जाए कि उनकी कोई सेवा करने की स्थिति आ जाए,
तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं तो उन्होंने तो साधु बना करके एक माता पिता का बेटा नहीं, उन्होंने साधु बनाकर मुझे लाखों करोड़ों माता पिता का बेटा बनाया। तो यहाँ पर ये जितने बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, ये सब मेरे पिता ही तो हैं। ठीक है, आध्यात्मिक रूप से मैं इनका आध्यात्मिक गुरु हो सकता हूँ, लेकिन शरीर की दृष्टि से तो ये सारे मेरे पिता तुल्य हैं। तो मैं अगर इनके विचारों की सेवा इनके सामने कर रहा हूँ, आज मैं अपने आध्यात्म की ऊर्जा हमारे शैलेश भाई से, छगन भाई से, दीपक भाई से, आनंद भाई से, ये जो नाम मैं देख रहा हूँ, अगर मैं ये सेवा इनके साथ कर रहा हूँ, अर्थात मैं अपना कर्तव्य तो निभा रहा हूँ एक पुत्र होने का। तो विचार करिए कि मेरी माँ ने, अगर मेरे गुरु ने मुझे सन्यासी बनाया तो करोड़ों माता पिता की सेवा करने के लिए बनाया। तो मैं कितना ब्लेस्ड हूं कि जब मैं इतने माता पिता की सेवा कर सकता हूं, तो मेरी कोई मेरे जन्म देने वाले माता पिता से दुश्मनी थोड़ी, तो मैं उनकी भी सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। तो बचपन में यह क्रिया हुई, 4 वर्ष की मेरी आयु थी जब मैंने संन्यास लिया, और तब से लेके अब तक मेरी दिनचर्या समय समय पर बदली गुरु ने। ये देखो, गुरु होना किसे कहते हैं वो यहां सीखी। बचपन में मेरी दिनचर्या अलग थी, तब मैं जो शिक्षा दीक्षा लेता था उसके अनुरूप मेरी दिनचर्या थी। जैसे मैंने बताया कि बच्चों के लिए जाप का समय अलग है, बड़ों के लिए अलग है, और बुजुर्गों के लिए अलग, वो कभी भी कर सकते हैं, उनके लिए पूरी अपॉर्चुनिटी। वैसे ही मैंने भी अलग अलग कालखंड में, आज की मैं अपनी अगर जीवन शैली बताऊं तो सवेरे मेरा नित्य जाप का समय निश्चित है। ये बात अलग है कि मैं अपना समय जाप में ज्यादा नहीं दे पा रहा हूँ, जितना मैं आश्रम में दे पाता हूँ उतना आश्रम से बाहर नहीं दे पाता, पर मैं प्रसन्न भी हूँ। जाप भले कम होगा, लेकिन मेरी सेवा जो है, जो मैं आप लोगों के बीच आकर के कर रहा हूँ, वो कल्याण का मार्ग जरूर प्रशस्त करेगी मुझे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आनंद में हूँ कि मैं आप लोगों के लिए जी पा रहा हूँ। सुबह शुरू होती है मेरी यात्रा, सोने तक मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ, किसी का फोन के माध्यम से, किसी का वाणी के माध्यम से, जहां जिसके जो सवाल, मैं दिन भर सवालों का जवाब देता हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं जवाब देने वाला हूं, मैं जवाब ढूंढता भी हूं। कई सवालों के जवाब मेरे पास नहीं होते हैं, तो मैं कहता हूं कि मुझे एक दिन का समय दो, मैं कल बताऊं। उस सवाल का जवाब मैं ढूंढता हूं, मैं खुद पता करता हूँ, अपने गुरुजनों से पता करता हूँ जो उम्र में मुझसे बड़े। हो सकता है कि 27 वर्ष की आयु में और 23 वर्ष के सन्यासी होने पर जो आध्यात्मिक अनुभव मेरा है, वो 50 साल बाद कुछ और हो। तो मैं गारंटी नहीं लेता कि जो आज कह रहा हूं वो 50 साल बाद भी यही रहेगा। हो सकता है कि इसका बेस्ट वर्जन आप देखेंगे। तो मैंने पढ़ना और सीखना कभी नहीं छोड़ा, और देखना, मैं अंतिम सांस तक अपने आप को विद्यार्थी ही कहलाना पसंद करूं। इसलिए कोई मुझे गुरु, आध्यात्मिक गुरु, धर्म गुरु कहता है तो मेरे को अंतर्मन में खुशी नहीं होती, मुझे बड़ी चिंता हो जाती है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं मुझे। पर सन्यासी हूं, इसलिए स्वीकार भी करना पड़ेगा मुझे मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मैं जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। लेकिन मन में डर लगता है, मुझे भयभीत होता हूँ कि मुझे हर प्रश्न के लिए, हर परिस्थिति के लिए तैयार भी तो रहना है। तो मुझे विश्वास है कि मेरा नित्य जाप, भले मैं जाप सुबह नहीं कर पाता हूँ कोई दिन, तो मैं रात को सोने से पहले करता हूँ, लेकिन मेरा जाप निश्चित है, मेरा पाठ निश्चित है। और मेरे अपने कुछ मंत्र पाठ भी है, मैं मंत्र का बड़ा उपासक हूँ। आप लोगों को बता दूं, मैं मंत्र का जाप बहुत करता हूँ, नाम जप के साथ साथ मंत्र उपासक भी हूँ। तो कई प्रकार की विद्याएं हैं हमारे धर्म में, तो मैं उसका भी पालन करता हूँ। शुरुआत में जब मैंने ये अपनी आध्यात्म प्रचार की जर्नी शुरू की थी, उससे पहले के 2 साल में एकांत में रहा था। आप सभी लोगों को बता दूं, 1.5 से 2 साल के बीच में लोगों से नहीं मिला, मैं 4 दीवार के एक कमरे में बंद रहा। उस वक्त मैंने शास्त्रों का अध्ययन भी किया, और कई प्रकार के, जो कहते हैं ना, यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, योग, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 8 प्रकार की चीजें, सबका पालन किया मैंने। उस समय में मैंने कठिन साधना जो कहते हैं वो करी, और वो साधना का प्रतिफल है कि आज भी इसी ऊर्जा के साथ में मैं आप लोगों के बीच हमेशा काम कर पाता, थकने नहीं देती मुझे वो साधना। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी आसन को सिद्ध करना मत छोड़िएगा।
गलती कर देते हैं कि हम अपने मंदिर में, हम सबके घरों में इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं, लेकिन उन मंदिर के सामने बैठकर हमने एक आसन को सिद्ध ही नहीं किया जहां बैठकर हम ऊर्जावान हो सके। तो मेरी दिनचर्या तो यही है, और बाकी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। ऐसे जो जो एक योगी को, एक साधु को करने चाहिए, आप गृहस्थी ना कर सकते हैं, वो चीजें मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। नहीं, मगर वो आपने इंस्पायरेशन का जो बताया वो बहुत बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, कि जो बच्चों के लिए, जो बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछा है, ये बच्चों के जरिए हम भी है, हमें भी जो आपको इंस्पायर करे वो हमें भी इतना बहुत अच्छा लगता है कि ये सुने। तो अभी बहुत क्वेश्चन हमने वो पूछा, मगर अभी क्या है कि सिर्फ मैं तो करीबन 4-5 क्वेश्चन ही ले सका आपके साथ आज, और करीबन टाइम भी आने वाला है। तो ऐसा करते हैं, चलो एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि एक सामान्य जीवन में लोग बोलते हैं कि फियर, डर, कि डर जो होता है वो समाज में ऐसा बोलता है कि भाई अगर आप रिलीजियस हो, आप भगवान को मानते हो, तो आपको डर नहीं होना चाहिए, निडर होना चाहिए, अभय होना चाहिए। तो इसके बारे में कुछ बता दीजिए हमें। देखो, डर तो हम सबके अंदर है। अगर वो डर हमें साधने के लिए बना है तो वो डर अच्छा है। अगर वो डर हमें नियम पर चलने के लिए मजबूर करता है तो वो डर अच्छा है। जैसे कि अमेरिका में कितने प्रकार के नियम है। अगर फ्री वे में चलना है तो इस तरह से चलना है, रुकना नहीं है, अगर रुक गए तो फाइन लगेगा। वो फाइन का डर है कि नहीं? फाइन के डर से आदमी रुकता नहीं है, फिर चलता रहता है। तो धर्म में धारण करने योग्य में कई प्रकार के नियम बनाए हैं। वो नियम का अगर भय है तो वो भय अच्छा है। लेकिन अगर लौकिक जगत की वस्तुओं का भय है, खो जाने का भय है, प्राप्त करने के बाद खो जाने का डर है, तो ऐसे डर का तो कोई वजूद नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो, सत्य वस्तु कभी खो नहीं सकती। जो चीज सत्य है उसको आपसे कोई हटा नहीं सकता। सत्य वस्तु को कोई खो नहीं सकता, और झूठ तो हमेशा खोने के लिए ही बना है। इस बात का ध्यान रखें, जो सच है उसे कोई खो नहीं सकता, और झूठ हमेशा खोने के लिए बना है। तो खोने का डर उसी को है जिसके पास झूठ का संसार है, झूठ की दुनिया है। आप लोगों से स्पष्ट मेरा निवेदन है, सिद्धांतों का अगर भय है तो वो भय अच्छा है। धर्म की व्यवस्था का भय है तो वो भय अच्छा है। तो भय से भागना ही क्यों है? भय को अपनी ताकत बनाओ। लेकिन अगर अनैतिकता का, दुराचार का, अशिक्षा का अगर आपको भय है तो फिर ऐसे भय से भयभीत होइए और ऐसी संगति का साथ मत करिए। दुराचार से दूर होइए, अनैतिकता से बाहर निकलिए और सिद्धांतों पर चलिए। तो डर हमारे अंदर है। ये डर अच्छा भी है और डर खतरनाक भी है। अच्छा क्या है वो भी मैंने बता दिया, और बुरा क्या है वो भी मैंने बता दिया। और आपने हमारा डर थोड़ा निकाल दिया इससे। हाँ। तो अभी एक और क्वेश्चन, जैसे ना बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी है। वो पूछिए तो ना, समय है हमारे पास। नहीं, अब वो तो ठीक है, मगर वो हमने जो मीटिंग का वो एडजस्ट किया था, तो अभी दूसरा एक चलो पूछ लेता हूँ। अभी एक सवाल दूसरा, जब अभी हम अमेरिका में है, अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट एरिया है, और जिन बच्चों ने पूछा है वो उसका भी, और हमारे हमने जो एक्सपीरियंस किया हमारे लाइफ में, वो उसके सभी को जुड़ के, तो ये है कि हम कैपिटलिस्ट कंट्री में रहते हैं। हमारी इच्छा ये होती है कि हम आज एक मॉडल ले लें, कल 2 करे, परसों 4 करे, जैसे ना हम वो फाइनेंशियली आगे आगे बढ़ते जाए। जैसे स्टार्टअप में भी होता है, कोई जॉब करता है, जॉब में भी होता है कि चलो आज ये इतनी सी जॉब है हमें, मगर तभी ये होता है कि अगर मैं रिलीजियस हो गया, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी रिलीजियस के पथ पे चल पड़ा, तो मेरे ये जो ग्रोथ है, जो जो मुझे वो प्राप्त करना है, वेल्थ जो क्रिएट मुझे मेरे पास लाना है, जिसे मैं क्या बोलता हूँ, भौतिक संपत्ति ना, तो ये मेरे इसमें थोड़ा अड़चन करेगी। जैसे इसको
थोड़ा बंद करेगी कि भाई नहीं, एक नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपको ये स्पिरिचुअल करना है, ये करना है, वो करना, तो ये हमें हमें वो स्टॉप करती है टू गेट द मोर वेल्थ। कोई अगर स्टार्टअप करता है तो भी। और एक एक चीज और बता दूं आपको कि जैसे हमने सुना है कि फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, तो मार्क जुकरबर्ग ने भी जब भी आईपीओ निकाला था तो इंडिया गए थे और इंडिया में कुछ ऐसी साधना करी हुई थी उन्होंने। और एप्पल के जो स्टीव जॉब्स है उसके बारे में भी, उसकी ऑटोबायोग्राफी में भी है वो, कि उन्होंने जब भी आईपीओ किया था तो वो भी इंडिया गए हुए थे, इंडिया टेम्पल में रहे थे वहां पे कुछ स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड। मगर हमें ये बहुत भीख लगती है कि अगर मैं रिलीजियस हो गया तो मेरा ये सब भी काम बंद हो जाएगा। तो इसमें आप बताइए कि स्पिरिचुअल होने से मेरा वेल्थ बढ़ेगा, कम होगा, मेरी लिमिटेशंस ज्यादा बढ़ेगी, नहीं होगी, इसके बारे में बताइए। देखो, स्पिरिचुअलिटी कभी भी किसी के कर्म को करने से रोकने के लिए नहीं कहती है भाई। शरीर का कार्य है कर्म करना, क्रिया करना। बुद्धि का कार्य है सोचना। हाथ का कार्य है क्रिया करना। आंखों का कार्य है देखना। जीभ का कार्य है स्वाद लेना। कानों का कार्य है अच्छा अच्छा सुनना। तो इससे आध्यात्म को क्या तकलीफ है? आध्यात्म तो ये कह रहा है कि वो कर्म करो जिससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। वो कर्म करो जिससे समाज का, प्रकृति का, राष्ट्र का विकास हो। ऐसे कर्म से अध्यात्म कभी किसी को बांधता नहीं है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हो, आपके व्यवसाय से किसी का कोई तकलीफ नहीं है, उल्टा एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो ये भी तो एक धर्म है, धर्म का ही स्वरूप है। अगर आपके व्यवसाय से रोजगार मिल रहा है, आपके व्यवसाय से एम्प्लॉयमेंट खड़ा हो रहा है, तो आप धर्म कर रहे हैं, अधर्म नहीं है ये। लेकिन अगर आपके व्यवसाय से एम्प्लॉयमेंट छीना जा रहा है, आपके व्यवसाय से लोगों के घरों की रोटियां खत्म हो रही है, छीनी जा रही है, उनके निवाला उनके मुख से छीना जा रहा है, आपके व्यवसाय से मानवता नष्ट हो रही है, आपके व्यवसाय से प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है, तो अधर्म है। कर्म करो, किसने कहा? कर्म करो पर रहो अकर्मा। कर्म करते रहो, स्वयं को उसका कारण मत बनाओ कि मैं कर रहा हूं। आप जैसे बहुत लोग कर रहे हैं इस दुनिया में काम, तो आप कोई नए नहीं, आप कोई बड़े नहीं है। आप कर्म करते जाओ और यह सोच के कर्म मत करो कि मुझे दुनिया में नंबर 1 बनना है इसलिए मैं कर्म कर रहा हूं। ना, मैं कर्म कर रहा हूं क्योंकि मैं मानव जाति को उन्नत किस्म की बनाना चाहता हूं। मैं प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ सेवा करना चाहता हूं। कर्म इसलिए करो। मार्क जुकरबर्ग ने जब कर्म की इस स्वरूप को देखा होगा अपनी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, और आप जैसा कह रहे हैं कि वो भारत आया, तो भारत से वो यही प्रेरणा लेके गया कि मुझे इस तरह की चीज बनानी है जो मानव जाति में सहयोग करेगी। वो बात अलग है कि उसके दुष्परिणाम आएंगे तो उससे मुझे कैसे रिजॉल्व करना है। उद्देश्य तो उसका यही रहा ना कि मुझे कम्युनिकेशन को इस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ जाए। आज पूरा विश्व एक परिवार है, उसके लिए फेसबुक एक बहुत बड़ा कारण है। आज पूरा विश्व एक परिवार है, व्हाट्सएप उसमें बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। 1 मिनट लगता है व्यक्ति को एक दूसरे से जुड़ने के लिए, कोई ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ रहा। तो चीजों को आसान किए उस व्यक्ति ने। उसको मैं धर्म के विरुद्ध नहीं कहूंगा, लेकिन इसके दुष्परिणाम आए तो उस दुष्परिणाम को वो सॉल्व करने का कार्य भी करे। यह आध्यात्मिक होना है। कर्म करो और ऐसा कर्म करो कि जिससे कईयों को लाभ मिले। यह आध्यात्मिक होना है, यह धर्म है, यह हमारा सिद्धांत है, यह हमने नियम बनाए। हम धारण करने योग्य इस वस्तु को धारण करें कि हम कर्म करते करते। तो किसने कहा है कि स्पिरिचुअल होकर के आप, अरे स्पिरिचुअल होकर के ही आप शिखर को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप व्यवसाय ही क्यों ना हो। तभी तो आप जान पाएंगे ना कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग बनना है। अगर आपका बिजनेस, अगर आपका व्यवसाय प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग है, तो समझ लेना आप अधर्म के मार्ग पर है। और अगर आपका व्यवसाय प्रॉब्लम सॉल्विंग है,
then you are on religious way, religious path. आप धर्म पथ पर हैं, क्योंकि आप समाज में अपने व्यवसाय के, अपने कर्म के द्वारा सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लोगों की मदद करना चाह रहे हैं। तो इसमें बुरा ही क्या है? और इस दुनिया में जितने सफल लोग हैं, मैं आपको ध्यान से बता दूं, चाहे वो अपने आप को नास्तिक कहते हो, लेकिन ये भी धार्मिक होना ही है कि उन्होंने दुनिया की किसी बहुत बड़ी समस्या का हल किया है। आज एलन मस्क सफल क्यों है? इलेक्ट्रिक व्हीकल लाया, अब वो इससे भी आगे का सोच रहा होगा कि मैं ऐसे चीज लाऊं जिससे प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे। उसे पता चल गया था कि ऑयल कंज्यूमिंग ज्यादा हो रही है, ये लिमिट सोर्सेस हैं, इसको खत्म करना पड़ेगा, आने वाले समय में ये चीजें बंद हो जाएगी, दुनिया रुक जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। वो लाया, अब वो क्या सोचेगा? ऐसी चीज लाऊं जो हाइड्रो पावर पे चले। वो क्या सोचेगा? ऐसी चीज लाऊं जो असीमित संसाधन से चले, लिमिट सोर्स से ना चले, अनलिमिटेड सोर्स से चलने वाली चीजों के द्वारा वो चीजों को कम्युनिकेट करना चाहेगा, ट्रांसपोर्टेशन को इजी करना चाहेगा। तो ये उसका अध्यात्म है, ये उसका धर्म है। वो अंदर की चीजों को, जीवात्मा को पहचान करके कहीं ना कहीं इस स्थिति की ओर बढ़ना चाह रहा है। उसने कहीं ना कहीं आध्यात्म के उस बारीक से बारीक अनुभव को तो प्राप्त किया है, तब जाकर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। समझ गए? वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम मेकिंग नहीं है। तो अगर आपको श्रेष्ठ बनना है, बेस्ट बनना है और बहुत पैसे वाला भी बनना है, तो पैसे का चिंतन छोड़ो और अपने व्यवसाय से आप समाज की कौन सी मदद कर सकते हो, वो व्यवसाय शुरू करो। दैट इज द वे। बहुत बहुत अच्छा। तो मुझे तो भी ऐसा लगता है कि मैं रुकू ही नहीं आपको। मगर कभी कभार क्या होता है कि जैसे खाना हम खाते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि चलो सभी कुछ ले ले, मगर हमें डाइजेस्ट भी तो करना है और इसीलिए थोड़ा सा ठहरना भी पड़ेगा हमें। तो अभी ऐसा करते, पहले तो मैं उन बच्चों को सभी जो जिन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजा, राजू भाई, और मैंने सिर्फ 2 दिन में, और प्रफुल्ल भाई ने, हमने वो पूरी कबीर विजडम टीम ने सभी मिलके हमने वो क्वेश्चन का कलेक्शन किया। तो इतना क्वेश्चन आया कि अभी तो 2-3 सेशन इसमें ही चले जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है। अभी तो क्वेश्चन की जो स्टेप्स है ना, वो ऊपर जा रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे रुकता हूँ। अभी दूसरा सेशन जब भी हम करेंगे, क्योंकि अभी आपको तो खोना नहीं है हमें, इसीलिए आपको तो हम अब हमारे साथ रखेंगे। हम पूछेंगे कि भाई ये नेक्स्ट सेशन जब यहाँ लाएंगे हम, तभी भी आपको हमें बताना है, बाकी का क्वेश्चन लेंगे। और तभी सभी बच्चों को भी, सभी पेरेंट्स को जो कुछ देख रहे हैं उसको भी बताना है कि अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है और गुरुजी से डायरेक्टली वो क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वेलकम। अभी हम यही चाहते हैं कि पूरा क्वेश्चन आप पूछो, अगर नहीं हो सकता तो हमें भेजो। हम पूरी कबीर विजडम टीम इसमें है, जिसमें हम क्वेश्चन लेंगे आपसे और गुरुजी से बारी बारी मिलते रहेंगे, पूछते रहेंगे, जानते रहेंगे और हमारा जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो करते रहेंगे। तो अभी तो यहाँ पे हम जैसे गुरुजी का आज का सिर्फ गुरुजी आज का सिर्फ आप आखिरी कोई संदेश हमें दे दें। बस आप आध्यात्म, धर्म और इन वर्ल्ड्स के बारे में जितना आज आप लोगों ने जाना है, ये सिर्फ एक जानकारी तक रखिएगा। इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फ्लो में बढ़िए आगे। फ्लो में बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्म करते जाओ। अगर आप वृद्ध हैं, आप कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं, तो भी आपके पास कर्म निश्चित है। अपने आप को रिटायर मत सोचो। ये रिटायरमेंट की सोच सबसे ज्यादा गलत है, सबसे ज्यादा गंभीर और सबसे ज्यादा घातक। हम तब तक रिटायर नहीं है जब तक इस शरीर में प्राण है, क्योंकि हमारी आत्मा भी रिटायर नहीं हो रही। आत्मा रिटायर होगी ना, उस दिन सब रिटायर हो जाएगा। तो आप ये सोचिए, जब वो रिटायर नहीं हुई तो मैं कौन होता हूं जो शरीर से रिटायर होने की बात कर रहा हूं। तो रिटायरमेंट वाली सोच हटाइए, कुछ ना कुछ करते रहिए। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप धर्म की कई प्रकार के स्वरूप हैं। परोपकाराय
ये भी तो धर्म है, परोपकार करना, लोगों की मदद करना। जो आपने अनुभव लिए हैं, बुजुर्गों से कह रहा हूं, उन अनुभवों को आने वाली पीढ़ी तक पोलाइटली पहुंचाना, उन अनुभवों को आदेशात्मक तरीके से नहीं, दोस्ताना व्यवहार के साथ पहुंचाना। अब दुनिया जो है साथी चाहती है, दुनिया जो है बाप नहीं चाहती, दुनिया सहयोगी चाहती है, रूल करने वाला नहीं चाहती है। डेमोक्रेसी आज इस दुनिया में इस तरह पहुंच गई है कि अब आदेशात्मक तरीके से कोई सुनना नहीं चाहता, सभी लोग सहयोगात्मक तरीके से सुनना चाहते हैं। सहयोगी बनिए, आपके अनुभव जीवन के बहुतों के काम आएंगे। दूसरा, युवाओं को मैं कहना चाहूंगा, आपके किसी भी उत्कर्ष में, आपके किसी भी प्रोग्रेस में आध्यात्म आपका सहयोगी ही बनेगा, आपको पुष्ट करेगा, अंदर से वीक होने से रोकेगा, मेंटली वीक होने से रोकेगा। आपको जब असमंजस होगा कि मैं ये करूं या ये करूं, राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं, जब आप किसी क्रॉस पे खड़े होंगे जहां पे स्ट्रेट, बैक, राइट एंड लेफ्ट, किस दिशा में जाना है, यह आपको कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। उस वक्त आपके पास रिलीजन और स्पिरिचुअल, ये दो ही एक ऐसी चीज होंगी जो आपको रास्ता दिखाएंगी, आपको लेकर जाएगी आपके लक्ष्य तक। और वहां पर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बस आंख बंद करके एक बार चिंतन करने की आवश्यकता है। आपको पता है इस शरीर के अंदर कैसी बॉडी क्लॉक घुसी हुई है। जब आप उस बॉडी क्लॉक को कह करके सोते हैं कि तुम्हें सुबह 4 बजे हमको उठाना है, एक बार के लिए वो आपकी आंखों को झपकाती है 4 बजे। फिर शरीर आलसी होता है, वो कहता है कि नहीं अब नहीं उठना, 1 घंटे बाद उठेंगे, तो बात अलग है। बाकी बॉडी क्लॉक तो एक बार आपको जगाती ही जगाती, वो आपको तैयार करती है, अब उठ जाओ। वैसे ही आपके अंदर का जो भाव है ना, ये जो जीवात्मा, ये आपका सबसे बड़ी चेतना है। एक बार इसके साथ आपका कनेक्शन हो गया ना, ये खुद आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपका बेस्ट वे कौन सा। तो इसलिए आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी आपकी सबसे बड़ी दोस्त बनेगी। डरो मत। आपको अगर दुनिया में सबसे बेस्ट बनना है ना, तो सबसे पहले यहां से जुड़ना होगा, स्टार्ट यहां से करना होगा, स्लोली स्लोली स्लोली। आप दुनिया के बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। और बेहतरीन होने का मतलब ये है, दुनिया की वस्तुओं को प्राप्त करने से आप बेहतर नहीं हो सकते, आप खुद से खुद को जान करके बेहतर हो सकते हैं। तो दुनिया का कोई अवार्ड आपको सम्मानित नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही अवार्ड बना है आपके लिए, वो है आपके अंदर की प्रसन्नता। जिस दिन आपको आपका जॉय मिल गया हमेशा के लिए, आप इस दुनिया के सबसे ज्यादा धनी इंसान हैं। तो इसलिए दुनिया का सबसे ज्यादा धनी होने की दौड़ से बचिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बनने की सोच से बचिए। बस स्पिरिचुअली अपनी चीजों को करते जाइए। जो मैंने बताया कि जो चीजें नहीं करनी है उन्हें छोड़िए, जो चीजें करनी है वो करते रहिए, आप सफलता को प्राप्त करेंगे। और मैं फिर बता दूं, दुनिया के जितने समृद्ध और जितने टॉप लोग हैं, जिनको आप टॉप 100 की फोर्ब्स की सूची में देखते हैं, वो सारे वो लोग हैं जो दुनिया में किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं। तो मेरे युवाओं को कहूंगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनिए। प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, प्रॉफिट मेकर बनने वाले दुनिया में कभी भी टॉप पे नहीं पहुंचे। वो रोटी कपड़ा मकान तक ही जिए जिंदगी को। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग बनिए। जिसका उपाय कोई नहीं ढूंढ पा रहा हो, वो उपाय आप ढूंढिए। थोड़ा क्रिएटिव बनिए। धीरे धीरे, अगर नहीं बन पा रहे हैं तो आध्यात्म की ओर आइए। आध्यात्म आपको क्रिएटिव बनाएगा, रिलीजन आपको क्रिएटिव बनाएगा, आपके जीवन में उमंग भरेगा। आपके अंदर की प्रसन्नता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, वो आपको कुछ करने के लिए तैयार करेगी। तो आध्यात्मिक होना, धार्मिक होना, अंदर की प्रसन्नता को जिंदा रखना जैसा है, आपकी जीवटता को बनाए रखेगी, वो है आध्यात्म, वो है धर्म। तो युवाओं के लिए संदेश, और मेरे छोटे प्यारे बच्चों के लिए मेरा ये संदेश है, बहुत ही प्रेम और स्नेह के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से मुझे सबसे ज्यादा अपेक्षा है। मुझे इन बड़ों से और बुजुर्गों से भी अपेक्षा नहीं जितनी आपसे है। क्यों? क्योंकि वो लोग जी लिए, बहुत कुछ जी लिए, वो धर्म पे ही जिए, कैसा भी आता होगा, खोटा, सही, उल्टा, सीधा, पर उन्होंने अपनी कोशिश की है बेस्ट करने की। उन्होंने तो अपने जीवन की निकाल ली। आप लोग एक ऐसी चैलेंजिंग दुनिया के अंदर जी रहे हो जहां पर
ह्यूमन राइट्स तो शिखर पे हैं, ह्यूमन राइट्स तो बहुत अच्छे से सिखाए जा रहे हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स के साथ साथ आपके रिलीजन राइट्स को जहां पे खत्म किया जा रहा है, इसके बारे में सोचना होगा। क्योंकि दुनिया का एकमात्र सनातन धर्म जो आपके यहाँ के ह्यूमन राइट्स के सभी मानकों पर खरा उतर सकता है, वो है हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जहां पर इतना विज्ञानमय, इतना साइंटिफिक रिलीजन है हमारा कि हमारे धर्म में की जाने वाली हर वस्तु का कोई ना कोई साइंस से रिलेशन है। विदाउट साइंस हम कुछ भी नहीं करते, चाहे पूजा पाठ से लेके हो, चाहे फास्टिंग से लेके हो, चाहे तीर्थ यात्रा से लेके हो, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा से हो, चाहे 4 धाम की यात्रा से हो। हमारी माइथोलॉजी भी साइंटिफिक है, हमारी पौराणिक कथाओं के पीछे का जो अलौकिक ज्ञान है, अलौकिक स्वरूप है, वो सब साइंटिफिक है। जिस धर्म की कहानियां विज्ञानमय हो सकती हैं, सोचिए वो धर्म कितना इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, मेरे प्यारे युवानों से, बच्चों से, धार्मिक बनिए। धार्मिक भी ऐसा धार्मिक बनना है जिसमें धार्मिक होने का बोझ दिमाग में नहीं होना है, फ्लो में, आराम से। मेरा हाथ थामिए, हम सब मिलकर के बनेंगे। और एक बार मैं फिर ये जितने श्रोता आज जुड़े हैं, सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं चाहता हूं कि अगले साल या फिर इस साल के विंटर वेकेशन या अगले साल के समर वेकेशन में यहाँ के मैक्सिमम से मैक्सिमम 200, 400, 500, 1000, 2000 जितने बच्चों की एज ध्यान रखो, 13 से लेकर के 28 तक, 26 तक, 30 तक, 13 से 30, 12 से 30 तक का ये जो 18 साल का जो यूथ है, इन बच्चों के साथ एक स्पिरिचुअल ट्रिप हमें डिजाइन करनी है। मैं आप लोगों को ये टास्क दे करके जा रहा हूँ। अब 2-4 दिन में मैं LA से निकलूंगा आगे की यात्रा। तो आप लोगों को मैं ये टास्क दे के जा रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए हमें एक स्पिरिचुअल ट्रिप डिजाइन करनी है, जिनमें वो बच्चे मेरे साथ सिर्फ घूमने के लिए जाएं। एक बार मुझे आपके बच्चों से दोस्ती करने, मेरे आपके बच्चों से मेरा प्रेम बनने, उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि ये आदमी हमारे जैसा है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये बाल इसके बड़े, ये इसकी हेयर स्टाइल है, ये तिलक लगाता है, ये इसका फैशन है, ये जो भगवा या ये सफेद कपड़े पहनता है, ये इसका अपना यूनिक स्टाइल है। बस इतना ही उन्हें लगने दो। उन्हें मेरे प्रति इस तरह की श्रद्धा मत बनाना कि मैं कोई भगवान हूं। उन्हें अपना दोस्त बनाने दो, मुझे मेरे साथ हार्टली कनेक्ट होने दो, उन्हें फील होने दो कि ये इंसान से हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं, तब कि वो कुछ सीखेंगे। उन पे बोधरेशन और प्रेशर मत बनाओ। तो मैं चाहता हूं कि एक ट्रिप डिजाइन हो जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे बच्चे मेरे साथ, चाहे वो यूरोप चले, चाहे इंग्लैंड चले, चाहे अमेरिका के ही किसी खूबसूरत जगह पे, किसी पिकनिक स्पॉट पे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन के लिए वो मेरे साथ रहे। वो 7 दिन मेरे साथ रहेंगे, वो पूरा आनंद करेंगे। सिर्फ 1 घंटा रोज मुझे देना है उनको, 1 घंटा, और वो तैयार भी हो जाएंगे किसी ट्रिप के लिए। वो 1 घंटा देने को तैयार हो। 1 घंटा तो वो सिर्फ मेरे से डिस्कशन करेंगे, और बाकी के रोज के 15 घंटे वो मेरे साथ जिएंगे, मेरे साथ दोस्ती करेंगे। एक बार हमारे आपके बच्चों के साथ मेरी दोस्ती हो गई ना, फिर देखना उनके जीवन में धर्म आध्यात्म बहुत आराम से पहुंचाऊंगा। आपके थ्रू नहीं, मैं अपने आप डायरेक्ट इंटरेक्शन करूंगा, पर पहले दोस्ती करनी जरूरी है, पहले उनके फ्लोर पे जाना जरूरी है। आप लोग उन्हें मंदिर के लिए मत फोर्स करिए, आप लोग उन्हें मेरे सेशन में आने के लिए फोर्स मत करिए, ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ने के लिए फोर्स मत करिए। पहले मेरे साथ दोस्ती कराइए, मेरे साथ प्रेम का रिश्ता बनाइए। जब उन्हें लगेगा ना कि ये गुरुजी जो है उनके जैसे ही है, मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ, मैं उनके साथ, उनकी इच्छाओं में उनके साथ शामिल होना चाहता हूँ। वो स्केटिंग करना चाहते तो मैं स्केटिंग करना चाहता हूँ, वो मेरे साथ बैडमिंटन खेलना चाहते तो मैं बैडमिंटन खेलते खेलते उन्हें धर्म सिखाना चाहता हूँ। वो मेरे साथ क्रिकेट, फुटबॉल खेलना चाहते तो मैं उनके साथ वो करूँगा। वो मेरे साथ गाना चाहते तो मैं गाऊंगा। वो मेरे साथ नाचना चाहते तो मैं जितना आता है मैं नाच भी सकता हूँ। मुझे उनके साथ कनेक्ट उस तरह से होने दो। प्लीज उन्हें फोर्स मत करो, उनके अंदर के आध्यात्म को आप लोग जबरदस्ती, जिंदा आध्यात्म को मारो मत। तो एक ऐसी ट्रिप डिजाइन करो, आपके बच्चों के लिए आप डोनेशन निकालो।
मेरे को कह रहे थे ना महाराज जी आप पैसा क्यों नहीं लेते, तो मैं इसलिए नहीं लेता कि मैं एक साथ बहुत ले लूंगा आपसे। या आपके $150 ये टुकड़ों में लिफाफे में देते हो, इसका क्या करूंगा मैं? मुझे आपके बच्चों के लिए डॉलर दीजिए, या फिर आप इतना पैसा जो मुझे देना चाहते हैं वो आप अपने बच्चों की ट्रिप के लिए निकालिए और उन्हें मेरे साथ भेजिए कहीं घूमने के लिए, बड़ा आनंद आएगा। बस इन्हीं भावों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं आप सभी लोगों के जीवन में ये टास्क लेके जा रहा हूं। इसको इसी विंटर में डिजाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है और 7 दिन या 4 दिन की कोई छुट्टियां निकाल सकते हैं, तो इस विंटर में उन्हें मेरे साथ किसी गर्म जगह पर भेजिए। और अगर अभी नहीं पॉसिबल है तो अगले साल के समर वैकेशन में उन्हें मेरे साथ में कहीं भेजिए। इस तरह की ट्रिप डिजाइन करिए, अभी से उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करिए। ज्यादा से ज्यादा माता पिता, ज्यादा से ज्यादा परिवार, आप अपने बेटे बेटियों को एक साथ, दोनों साथ चलेंगी, बेटियों का ग्रुप और बेटों का ग्रुप। और ध्यान रखें, हम कोई नहीं होते बेटे बेटियों में भेद करने वाले। ये जो अलग अलग डिवाइडेशन की और ये जो सिस्टम है ना, ये बंद कर दीजिए, सबको साथ भेजिए। हाँ, स्टे के लिए अरेंजमेंट सबके अलग अलग रहेंगे, वो मर्यादा के अनुरूप, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चों के अंदर की मर्यादा समाप्त हो, लेकिन जाएंगे हम सब साथ। बस इसी सोच के साथ हम लोग निकलेंगे। आप सभी के जीवन में खूब खूब उत्कर्ष हो, खूब आनंद हो, खूब ईश्वर आप सभी के जीवन में आध्यात्म और धर्म को पहुंचाए। देखो, इस बार के सवाल बहुत भारी भारी और ऊंचे ऊंचे थे। अगली बार से हम उन सवालों को हर व्यक्ति के द्वारा उनके मुख से सुनना चाहेंगे, और आप अंतर मन में जो सामान्य रूप से फील कर रहे हो वैसे सवाल भी सुने, क्योंकि इतने भारी भारी सवाल हमें कई बार उलझा देते हैं। तो हर अगली बार इसको याद रखना, जो मैंने आज बोला, इस पूरे सेशन को वैसे भी ऑनलाइन है, सेव रहेगा, लेकिन आप अगर उस स्तर पे हैं तो ये सेशन आपका काम का है। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए सामान्य से सामान्य सवाल भी बहुत सारे हो सकते हैं, वो भी हम अगले सेशन में सीधा उसी के माध्यम से जुड़ेंगे। और अगली यात्रा बहुत जल्द मैं अमेरिका की फिर से करूंगा, 5-7 दिन बाद तो जाऊंगा, लेकिन अगली बार फिर आऊंगा। और अगली बार आऊं तब एक दिन एक क्षण भी मेरा खाली ना जाए। इस बार भी नहीं गया और अगली बार भी ना जाए। ज्यादा से ज्यादा हर दिन अलग अलग शहरों में अलग अलग सेशन हो और हर व्यक्ति को उसमें आना है, क्योंकि पहली बार ये मौका मिल रहा है कि आप लोग क्या चाहते हो वो मुझे शेयर कर सकते हैं। बस इन्हीं भावों के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। राम कबीर साहेब बंदगी। Are we ending the sermon by? Yes. All right.